सुंदर भगवान की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी विद्यापीठ। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेषा शून्यवादी पाशार्य सकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकानंद शिवाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी शिवाय वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. You have mic with them? Okay. So let us quickly recap some of the main points which we saw in the morning. You can take the mic and say. Yeah. First of all, we saw that we saw like practical example, like the college also, all like there's medicine. Is it on? I'll tell you this one. Yeah, you can proceed. Like in college there is medicine and all that planned. Very well, like the whole creation of things planned. And also like even if we talk about luck, so there will be someone who gives that luck as well, like good luck and bad luck. So we discussed there's always a luck awarder. Nothing happens by chance. Okay, next somebody else. Yes, whatever we get in our life is the account is made by. There should be someone who should be taking account of the deeds that we do, like the good deeds and the bad deeds that we are doing. So the Paramatma is sitting inside us, who is taking account of all these things, and that will be, and according to those statistics, we will be awarded the good things and bad things in our lives. Yeah, so this also we discussed, right? That how in our hearts Paramatma is sitting, and who awards us different things. Okay, good. Paramatma is the witness, right? Okay. And any other main point? There are chronic disease and legal implications and born in low degree family. 5 things are there, right? What are those things? Legal implication. Born in a low degree family, uneducated, very early college. Yes. So these are the ways by which one gets sinful karma. Mainly this kind. Okay. Any other point we saw? Main point. Apart from this. So we see that who chooses for all of us these things like that Jesus told, and on what basis? So here they have given an example of judge, like one of them got a compensation of tax, another one got accused of rape, and mother they got 14 years of jail or something like that. So this is all because of the law of karma that is on our previous slides. Okay, so we discussed that how based upon the law of karma, all these kind of things are being provided to everyone, right? Now these differences are there, right? We discussed one particular thing about judge wala example, no? The example of judge. What we discussed the example of judge. Could you recollect? Like based on the activities of the individual, and that is according to the laws, one is awarded punishment or reward, right? So which means what? Is a judge partial or impartial? Judge is impartial, right? Judge is equal to everyone. So based upon their own activities, judge awards the rewards, right? Same way, Lord also awards
But see, because he misused that, then you know what happened is he has to die ultimately. So because he was not Krishna conscious, even though he was having a big stock of punya karma, he was having big material resources, but that led to his doom. समझ में आपको यार ऐसे होता है. This is the philosophy. Okay, good. Another one is like you have given the example of judge gives judgment according to the rules made by the government. So the dharma is the rule made by the God. And we all have to follow that rules, that spiritual principle. Spiritual principle of austerity and cultivating knowledge, sacrifice and association of sacrifice. Yeah, good. So we discussed that dharma, the rules are being set by God only, isn't it? Right? Just like in a government also, in a country also, the rules are meant for country only, by the government only, right? You cannot manage. Manufacture own laws and all. The same like This happens by chance. So this is not good that they think that God is partial. yeah, it's not a matter of chance, it's a matter of choice. We discussed. Good. There are few things which we can choose. I mean, about beauty and knowledge. This is we cannot choose. So they are based upon our destiny, right? No? Okay, right. Any other point remaining now? Okay. Like we get the punishment for our bad deeds, but that punishment is out of love only for our own benefit. Yes. So even that punishment is also meant to help us become reformed and to again align ourselves, with the proper way. Okay. And so we are getting this evil because we have come in this material world in a human life because we have a purpose to be self-realized and to return back to Godhead. So that's why we have been given this free will, but it's in our hand that how we use it. So if we don't use it, then Krishna forces upon us these miseries. Basically. So what is there in our hand is our free will, right? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था एक पॉइंट जो मेन पॉइंट था कि देखो कुछ चीजें हमारी लाइफ में डेस्टाइंड है, राइट? जैसा भी ये सब हमारी जो वेल्थ है, हमारी जो एजुकेशन है, वो सब डेस्टाइंड है, लेकिन हम उनको कैसे यूज करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दोस रिसोर्सेज नाउ, दैट इज नॉट डेस्टाइंड. लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक रावणा कैन नॉट से लेटर है, आई वाज इट वाज इन माय डेस्टिनी टू मैंने सीता मैया का हरण करना है और लोगों को मारना, एक्सप्लॉइट करना है, ये मेरी डेस्टिनी में लिखा था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था. कैन रावणा से लाइक दिस? No, Ravana cannot say it like this, right? Ravana has got certain amount of wealth and being king and all, so that is being provided as per his previous destiny. But now it's up to him that how he's going to use that position. He can use it in a positive way for proper usage, or otherwise he can misuse it. So that free will is always there with the jiva. Okay, so so this was another thing which we discussed about, and also we discussed another important thing, that how our actions now are going to decide our future destination. Our previous actions have decided our current destination, and same way whatever actions we are doing now, they are going to define our future destination. Okay, these are the main things we discussed. Okay, और कोई pressing point जो छूट गया? Okay, I think most ये सब discussions हमने किए थे, right? Now we are going to see another very interesting part, important part. Okay, so till this point I think we have all seen, right? So this was about destiny versus free will. Now we will discuss something about destiny versus endeavor. Okay, so one of you just read this first, then we'll discuss. Yes, Shivanshu, पढ़ो. Destiny versus endeavor. Karma, modal notion. There is no such thing as destiny. Everything is in our own hands. Everything is determined by destiny. Nothing is in our hands. So destiny determines the consequences of our past actions, not our present actions themselves. धृतराष्ट्र. ओके, तो सी देखिए यहाँ पे बात करें हम डेस्टिनी वर्सेस एंडेवर. एंडेवर मतलब हमारे एफर्ट्स का, राइट? तो सी ये दो फिलॉसफीज जनरली रहती हैं इस वर्ल्ड में, गेटिंग ना? क्या फिलॉसफीज रहती हैं? एक को बोलते हैं कर्मवाद. कर्मवाद मतलब कि क्या है?
सब कुछ हम पर डिपेंडेंट है, जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा. You know, if you will work very hard, you can achieve anything of this world. That is called as a karmavad. You know, there is nothing called as a destiny. There is nothing called as, you know, God's interference and all. No, that is a Western notion, the modern notion which is there, right? Everything is in our own hands, right? Like this example is, you know, of Mike Tyson. You know, Mike Tyson, he was a very famous boxer of all the times. You know, he was practically undefeatable. One after another, he was, defeating everyone. And he was, in it practically, he told that, nobody can conquer me. I'm undefeatable. Like that उसने declare भी कर दिया था recently, मतलब पहले उस समय में. And then what happened? He got a Parkinson disease, जिसके कारण वो हाथ भी नहीं उठा पाता है, लकवा जिसको बोलते हैं ना. And what to speak of that match and all. Now ओलंपिक मशाल उसको उठाने के लिए बोला था, बट वो भी नहीं उठा पा रहा था. उसको भी उठाने के लिए उसको 2-3 लोगों का सपोर्ट चाहिए उसको उठाने के लिए. माइक टाइसन. तो he was considering that everything is dependent upon me. I can do anything, but you see, and God make him realize that how it is not completely upon his will, it is ultimately on the God's will, right? So this is called as a karmavad, right? है ना, हम अपनी इच्छा से जो भी करना चाहे हम कर सकते हैं, जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं. Okay, this is one set of philosophy. And what is देववाद? देववाद मतलब कि क्या है? जो भी मेरे कर्म में लिखा होगा वो मिल जाएगा, राइट? जो भी भगवान की इच्छा होगी वो हो जाएगी, राइट? तो मुझे क्या करना चाहिए? आराम से सो जाना चाहिए, राइट? दैट इज अनदर फिलॉसफी, राइट? तो क्या लगता है आपको कौन सा सही है? या दोनों सही नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, राइट? सही क्या है? व्हाट इज द वैदिक फिलॉसफी? विल डिस्कस इट लाइक दैट ना. दोनों सही क्यों नहीं है? देखो, कर्मवाद की बात करते हैं हम लोग, तो ऐसा है क्या कि हम जो चाहें वैसा हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? Say everyone wants to become a Bill Gates, Tata, Birla, right? Is everyone able to become like that? No, you'll not find. इंडियन आप इनकी भी लाइफ स्टडी करोगे ना, ये सब लोग की लाइफ में इनकी डेस्टिनी है, पुण्य कर्मा, इसलिए लोग बन जाते हैं. देखोगे, राइट? और आप देखोगे उनका पास पुण्य का स्टॉक था, उनका लिखा था कि वो वेल्दी बनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट किया, रोक लिख किया और वो बन गए बड़े लोग, राइट? आप देख लो फेसबुक का जो ओनर है या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, सबका लाइफ आप अगर स्टडी करोगे आप देखोगे इट्स ऑल बेस्ड अपॉन द प्रीवियस कर्म, पुण्य स्टॉक, राइट? अब देखोगे कोई बॉय भी है, ज्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं करता है, बट थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में भी उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं और टॉपर बन जाता है. ये पुराने परिक्रमा का बहुत सारा इफेक्ट रहता है, राइट? आपने देखा अपने क्लास में कई बॉयज ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, हो सकता है आप में से भी कई लोगों ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए बट मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते थे अपने आप, राइट? तो बताना नहीं चाहेगा, आई नो, बट ठीक है, बट होता है आप, राइट? क्योंकि पायस कर्मा है आपके पास में भी, आप यहाँ तक पहुंचे हो ना इस कॉलेज तक, मतलब यू ऑल्सो हैव अ पुण्य स्टॉक इन योर लाइफ, इसलिए आप दैट्स व्हाई यू सी व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? 700 crores, correct? Out of 700 crore, how many have the opportunity to come to good college and to study engineering and to be able to have a worthwhile earning? कितने लोग होंगे बताओ? You all will be in the top 10% population of the whole world. अगर आप कंपेयर करो जो टॉप 10% पॉपुलेशन लोग हैं पूरे वर्ल्ड का, जिनके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं एक मटेरियल लाइफ के लिए, उनमें आप सब रहोगे उसमें, राइट? तो ये कैसे हो पाया? बिकॉज यू हैव अ पुण्य स्टॉक फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ. तभी आप देखो कितने सारे बच्चे जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जिनको अच्छी एजुकेशन, जो लोग 12th तक भी नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, JW तो भूल जाओ, राइट? यू ऑल्सो हैव अ गुड पुण्य स्टॉक इन योर लाइफ. तो एनीवेज द पॉइंट हियर वाज दैट इज it's not that whatever we want to achieve, we can achieve, with our efforts. ऐसा नहीं होता है, right? In the Bhagavad Gita, Krishna says about there are 5 factors for any action. Okay, I think I can show you also that. Just a second. ये ठीक है, लंबा डिस्कशन हो जाएगा, छोड़ देते हैं उसको. जस्ट बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको. 5 फैक्टर्स भगवान वहां पे बताते हैं गीता में कि 5 चीजें हैं जो हमारे एक्शंस को डिफाइन करती हैं. 5 फैक्टर्स होते हैं. तो उसमें पहला एक फैक्टर है हमारा डिजायर, हम क्या करना चाहते हैं, आवर ओन एफर्ट्स. ओके, उसके अलावा हमारी बॉडी, लाइक आप कुछ एफर्ट करना चाहते हो तो किससे करना पड़ेगा? आपको बॉडी से करना पड़ेगा. योर बॉडी शुड बी ऑल्सो एबल टू हेल्प यू. Many times we desire something, but body may not cooperate. Right? For example, I give the example: if somebody has a diabetes now he has desire to eat lot of sweets and all, but can he eat? He cannot eat because the body will not cooperate with him. Right? So same way, the body is one of the factors. Our body, the position of our body. Same way, our senses. Senses जो है, senses are the instruments by which we fulfill our desires. Right? तो senses भी matter करते हैं, है ना? Body भी matter करती है. Plus भगवान ultimately भगवान ही sanction करते हैं हमारे desires को. एंड देन उसके अलावा सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, किस सिचुएशन में आप पड़े हो वो भी डिफाइन करते हैं. तो लाइक टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एंडेवर के होने के कारक होते हैं. देयर आर 5 कारक.
जनरली वी थिंक कि हम ही कारक है, बट हम ही कारक नहीं है. हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? ओनली 1/5. Only 20% it depends upon you. Just to give a simple example, like you have given for JEE exam, right? I think JEE exam मैंने बहुत बार आपका ले आया हूँ, right? अपने discussions में क्यों? I don't know, आप में से कितने लोगों को अच्छी memories है उसकी, कितने को bitter memories है, I don't know. But तो you see, आपने एग्जाम देने का डिजायर रखा, अच्छे कॉलेज में जाने का डिजायर रखा, लेटेस्ट राइट ना? तो आपका एक कंट्रीब्यूशन था, बट उसके बाद में बाकी चीजें मैटर करती है ना. आपके किस तरीके के फाइनेंशियल सिचुएशन है, राइट? किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ पा रहे हो, कितना एफर्ट लगा पा रहे हो, राइट? प्लस आपकी बॉडी की भी क्या कंडीशन उस समय, राइट? मान लो उस समय आपका बॉडी का कंडीशन ऐसा है कि आप ज्यादा पढ़ नहीं पाते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, कभी हो जाता ना, या फिर एग्जाम के टाइम पे आपको कोई बहुत बड़ा बीमारी हो गया जिसके कारण आप ज्यादा नहीं पढ़ पाए, राइट? फैक्टर्स आते हैं ना ये सारे, राइट? और छोड़ो ये सब, आपने एग्जाम सब अच्छे से दिया था, बट पता चला कि वो जो टीचर था जो चेक करने वाला था लेटर से, ऑफ कोर्स आजकल तो ऑटोमेटेड होता है, बट सपोज क्या उसका सपोज बीवी के साथ में सुबह सुबह झगड़ा वगड़ा हो गया था, और जो सामने कॉपी आई उन्होंने उस पर पूरा झगड़ा निकाल दिया क्लास, राइट? या फिर आपके मार्क्स थे 93 बट उसने 39 कर दिया, उसको उल्टा हो जाता है कई बार कंप्यूटर में भी जब करते हैं ना. सी हर जगह पे आप देखोगे बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं. सो द पॉइंट इज दैट टू थिंक दैट एवरीथिंग कैन हैपन बाय आवर ओन एफर्ट्स इज नॉट ट्रू. यू विल फाइंड इट डज नॉट वर्क लाइक दैट एक्चुअली स्पीकिंग, राइट? इंडियन आप देखोगे जो बड़े बड़े लोग बन जाते हैं या सक्सेस पाते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि वो लोग उन्होंने बहुत हटके कुछ किया. समहाउ उनके पास पुण्य का स्टॉक था, उन्होंने जो भी किया उसके कारण वो उनका लिखा था बड़ा बिजनेसमैन बनना, बड़ा वेल्थ कमाना. इस टाइप देखोगे, आप स्टडी कर लो धीरूभाई अंबानी ना, आप नहीं देखोगे, आप आज के जो मेन टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप देखो, हाउ मेनी ऑफ देम हैव स्टडीड फ्रॉम IIMs? नॉट इवन सिंगल आल्सो यू विल फाइंड इट. मोस्ट ऑफ देम आर आप देखोगे दे वर स्टडीइंग हियर एंड देयर एंड ऑल, एंड बाकी उनका हो गया अपने आप आपके, क्योंकि डेस्टिनी में था ना उनका बनना, लिखा था. स्पीकिंग मानते हैं बात को, राइट? यू टेक धीरूभाई अंबानी, यू टेक टाटा बिरला, रतन टाटा, ये लोग IIM से पढ़े हैं क्या? IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर से पढ़ के गए थे, इसलिए बहुत अच्छे से दिमाग लगा के बिजनेस स्टार्ट कर पाए लोग. ऐसा नहीं है आप देखो उनके लाइफ में, दे वर मेंट टू बी, उनके पुण्य का स्टॉक है, इसलिए उनको छोटा मोटा जो भी किसी में भी हाथ डाला वो फ्लरिश हो गया और वो बड़े आदमी लोग बन गए. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली स्पीकिंग, राइट? कर्मा फैक्टर एक्ट्स. So the thing is that things are not in our hands fully, that we can just desire, and of course our thing is also having some part, but it also depends upon the other factors. What is the desire of the Lord, the place, the body, the situations, the karma which we have. Total 5 factors भगवान बताते हैं, okay? And second thing is to think that सब कुछ भगवान की इच्छा से होने वाला है. That is also not completely true, right? Our endeavor also has a part. Most of the people, they become very lazy by thinking like this, that everything is happen ना, जो जैसा जैसा लिखा होगा वैसा वैसा होगा, ऐसा नहीं है. हमारा एक कंट्रीब्यूशन भी रहता है उसके अंदर, राइट? सो सी व्हाट इज द वैदिक फिलॉसफी? द वैदिक फिलॉसफी, एक्चुअल वैदिक टीचिंग इज व्हाट, दैट बोथ कर्मा एंड द देव मींस द डिजायर ऑफ द लॉर्ड, बोथ कर्मा एंड देव कंबाइन टू डिटरमाइन द रिजल्ट. तो इसके एग्जांपल भी बताया जाता है, जैसे सपोज आपको क्रॉप्स ग्रो करनी है, तो नाउ फॉर ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स यू नीड टू सो द सीड्स, you need to go for plowing of the field, right? आपको ये करना पड़ेगा. And then is that sufficient for the crops to grow? You also have to depend upon the rains, right? अगर बारिश होगी sufficiently अच्छी, तब आपके क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे, राइट? तो सेम है, आपने अपना एफर्ट लगाया, से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. आपका एफर्ट भी जरूरी है, आपको भी जाके खेत में जाके थोड़ा बीज बोने पड़ेंगे, और क्या बोलते हैं उसको, प्लोइंग को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, जुताई बोलते हैं ना. हाँ, जुताई करनी पड़ेगी. हाँ, खेत जोतना बोलते, राइट ना? आपको वो करना पड़ेगा, और फिर अगर रेन्स होंगी तब आपके पास में अच्छे चांसेस है कि आपके क्रॉप्स ग्रो करके, राइट? अगर आप देखो दोनों में से एक ही पार्ट को मिस कर दो, अगर आप अपना वाला पार्ट ना करो लेटर से, तो बारिश तो होगी लेकिन क्या क्रॉप्स ग्रो करेंगे? नहीं ग्रो करेंगे, राइट? और मान लो क्या बोलते हैं, आपने अपना पार्ट कर लिया, अगर रेन्स नहीं हुई तो भी काम नहीं बनेगा, राइट? दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो इसलिए जो एक्चुअल में हमको जो रिजल्ट मिलता है, वी गेट द रिजल्ट्स बेस्ड अपॉन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ दिस थिंग्स. हमने जो एफर्ट लगाया और साथ में हमारे भाग्य में जो लिखा था, दोनों मिलके हमारे को रिजल्ट ऑफर करते हैं. समझ में आपको वाला पॉइंट? दैट इज द मेन फिलॉसफी. तो our efforts also has a part, and then the desire of the Lord also has a part. Both things are there, right? अभी जैसे everyone wants to be a Bill Gates, billionaire and millionaire, right? तो आपका तो एफर्ट बहुत लगा रहे हो आप 24 घंटे, लेकिन अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है तो आप नहीं बन पाओगे, राइट? कई लोग देखो आप बहुत मेहनत करते हैं बट नहीं हो पाता है उनका, क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि दैट डज नॉट वर्क इट, राइट? इवन आप स्कूल डेज में भी आपने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बड़े सीरियस होते हैं, क्लास में भी बहुत अच्छे से बैठते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, होमवर्क भी अच्छे से करने की कोशिश, बट लाख कोशिश कर देते हैं. लाइक आई रिमेंबर वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने कि सर
मुझे पक्का पता है सर, मैं पूरे सेमेस्टर भी पढ़ाई कर लूँ, सब अच्छे से कर भी लूँ, तो फिर सर मेरा 7.5 से ज्यादा पॉइंटर नहीं बनने वाला है सर. ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंटली टेलिंग. या दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि होता है ऐसा स्पीकिंग, दैट वर्क्स यू नो, क्योंकि है कर्मा में लिखा है, मार्क्स ऐसे हो जाता है आप देखोगे राइट. कई बार क्या होता है, आपने 50 मार्क्स का पेपर किया, 90 मार्क्स आपके आ जाते हैं. होता है, अगर पास कर्मा बहुत अच्छा है, हुआ है किसी के साथ में, ठीक है, ये पुण्य कर्मा है आपका राइट ना. बट डोंट वरी है ना. अगर वो इस भौतिक जगत में रहोगे तो उल्टा भी फेस करना पड़ेगा राइट. 90 का पे आओगे तो 50 भी क्या हो सकता है, फेल भी कर दिया जाए कभी. इट इज हाउ बटल वर्ल्ड थिंग्स कीप्स ऑन एक्टिंग. द पॉइंट इज, समझ आप लोगों को, both things have a part to play. Our efforts also have a part to play, and then the destiny also matters. Both things combine to give us the ultimate result. Okay. now we are going to discuss some very important points next few slides. Okay. Yeah, please one of you read this. Material destiny cannot be appreciably changed. Spiritual progress cannot be checked. Consider a race between Luna, Mob, Maruti, and Bench. Can the lunar driver speed up and win the race by any amount of endeavor? Okay, I think आगे वाला part भी पढ़ सकते हैं. Read. Our material bodies are awarded with certain advantages and disadvantages. We cannot appreciably change them. Example, a dog cannot run faster than a horse or cheetah. Example, second, a bully cannot become fort by any endeavor. So समझ में आपको क्या बताया है? देखो, जो हमारी मटेरियल डेस्टिनी है उसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं ला सकते हैं राइट. विच मीन्स व्हाट, आपके लाइफ में कितना वेल्थ लिखा है आपके लाइफ में, आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो. कितना आप बुद्धिमान वाला काम कर सकते हो, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते आप राइट. एग्जाम्पल क्या दिया देखो यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव अ लूना, यू नो लूना. लूना याद है आपको, जो मोपेड है, इसको मोपेड बोलते हैं, मोपेड. स्कूटी नहीं आती, स्कूटी आपकी, स्कूटी के जैसे ही इसका पहला वाला जो वर्जन था राइट, देखा होगा, ऐसे गोल वाली लाइट होती थी सामने और वो डंडे ऐसे निकले होते थे, देखा है आपने? कितने लोगों ने चलाया या देखा है? यू नो लूना, साइकिल के जस्ट ऊपर वाला वर्जन होता है राइट ना. यस यस. तो सपोज यू हैव अ लूना, okay, you have a Luna, you have a Maruti car, and you have a Benz car, right? So these three things are there. Okay, now can we expect all the three to run at the same speed? They're never going to run at the same speed, isn't it, right? Same way you will find by the laws of karma, all of us are being provided with different kinds of body, right? Now somebody is very intelligent, now आप कितना भी एफर्ट लगा दो उसके आप इंटेलिजेंस के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हो राइट, क्योंकि सबका अलग अलग कैपेसिटी, भगवान ने हमको एक अलग अलग कैपेसिटी देकर बनाया है. आप देखो राइट, फॉर एग्जांपल like now suppose somebody is a very sweet singer, like Cuckoo is there now, very sweet singer right. Now can the crow try to be a cuckoo? वो भी थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक क्लासेस लगा के ना सारे can it happen ever right? कभी कौवा भी एक सिंगर बन जाएगा, ऐसा होगा क्या? No, Krishna has awarded them particular talents as per their bodies only, right? Like suppose like now I don't, मेरे को पेंटिंग ज्यादा समझ में नहीं आता राइट, दिमाग नहीं घूमता उस पर पेंटिंग, जैसे हमारी ड्यूटीज हो तो सब पेंटिंग बनाते रहते हैं, कुछ उस पर ज्यादा दिमाग नहीं जाता राइट ना. अभी मैं कितना भी एफर्ट लगाऊं तो भी मैं ज्यादा बना नहीं सकता पिक्चर से राइट. एंड सम ऑफ यू मे बी बॉर्न टाइप पेंटर्स राइट, कितने लोग हैं जो बचपन से ही पेंटिंग में वो बहुत शौक हो गया राइट. तो अब ये क्या है, ये आपकी इनहेरेंट टैलेंट है जो भगवान ने आपको दे रखी है राइट ना. तो देखो यहाँ पे यही मेन चीज समझ में बता रखे हैं कि जो हमारी मटेरियल डेस्टिनी होती है उसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं. समझे आपको, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए एक कैपेसिटी मिली है राइट. some of us have got Luna body, some of us have different talents. जिसके किसी का कंठ नहीं दिया है भगवान ने ज्यादा, कितना भी एफर्ट लगाया. आपने कोई स्टोरी सुना होगा ना भीम के बारे में राइट. एक बार भीम को भी मन किया कि मैं भी थोड़े अच्छे कीर्तन भजन है ना, लोग मेरी भी थोड़ी वाहवाही करें है ना, क्या प्रभु क्या कीर्तन करते हो तुम राइट. तो भीम ने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा रिहर्सल करता हूँ. सुना होगा अपनी स्टोरी राइट. वो गया फॉरेस्ट में, नहीं सुना है आपने? कितने लोगों ने नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है रादर? बताओ नितेश को, बताओ सबको थोड़ा स्टोरी माइक पे. भीम जी भी उनको भी इच्छा होता है कि मैं जाके ये तो फिर वो जाते हैं सीखने के लिए जंगल में, फिर वो गाने लगते हैं, फिर गाते हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर के जैसे आता है. तो फिर जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं. फिर युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इन्हें बंद करवाए नहीं तो हमारा जीना खराब हो जाएगा. तो फिर से
सर यही Okay, किसको पूरा वर्जन पता है? इसके आगे वाला वर्जन पता है? हाँ बताओ। देखते हैं कि सब टीम देखते हैं ऐसा कि अर्जुन को अप्रिसिएशन मिलता है कि वो हल्का ड्रामा बहुत अच्छा गाना गाता है, ब्लॉग भी और भी चीज गाता है। तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ तभी बुलाया जाता है जब किसी से फाइट करनी हो, और किसी चीज के लिए तो मुझे बुलाया नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि मैं भी अगर टैलेंट दिखाऊंगा मैं भी सिंगर बन जाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहे कि उन्होंने मुझे अपने टीचर अलॉट करवाया, तो टीचर अलॉट करवाया तो उनसे सिंगिंग सीखने लगे। बट उनकी आवाज इतनी तेज थी, सबको वहाँ प्रॉब्लम हो गई, इतना तेज गाए थे आसपास के सब एरिया में मुझे जगह प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से शिकायत कर दी कि आप इनसे कहिए, हम सीधे कह नहीं सकते। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनके लिए कहा कि आप यहाँ आए, तो वो कह रहे हम तो सीखना है। फिर उनके अरेंजमेंट करवाए जंगल में, तो वो जाके जंगल में प्रैक्टिस करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत तेज प्रैक्टिस कर रहे थे सिंगिंग की, और आता है क्या वॉशमैन आता है, तो उन्हें लगता है धोबी आता है वहाँ पे, गधे को ढूंढते हुए आ रहा होता है, राइट? वॉशरमैन आता है तो उन्हें लगता है, तो पूछते हैं भी महाराज आप क्यों कर रहे हो? तो पूछता है वॉशरमैन, पहले आप हमें वचन दीजिए, आप हमें मारेंगे तो नहीं? तो क्या हम क्यों मारेंगे, तो बताओ क्यों यहाँ पे आए, यहाँ क्यों आए हो? कहे कि आप इतना तेज गा रहे थे, मुझे लगा कि मेरा गधा यहीं पे आएगा। तो अपने गधे को ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंच गया। तो फिर बोला क्यों आया? बोला मुझे लगा आपने कि मेरे गधे को देखा है क्या? मेरा गधा, आवाज आ रहा था गधे का, कहीं तो इधर ही होगा। तो उसके बाद में फिर भीम ने प्रैक्टिस छोड़ दिया। बोला ठीक है, मुझे समझ में आ गया मेरा नहीं है वो। तो कहने का क्या मतलब है कि सी यू विल फाइंड कि जो भी हमारे मटेरियल टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं ना, देखोगे कि उसमें हम ज्यादा डिफरेंस नहीं देख के आ सकते, राइट ना? आपको जैसा फेस कट मिल गया, क्या आप उसका कोई ज्यादा कुछ कर सकते हो क्या? आज के समय में फिर भी लोग थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी करवा देते हैं, बट जनरली आप ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप, राइट ना? तो अब देखो जिनका फेमस बनना होता है ना, अब देखो कि जो भी लोग अभी फेमस है ना, बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस एंड ऑल, अब उनका कुंडली मैच करवाओ, उनके कर्मा में लिखा था दैट दे विल बी सच काइंड ऑफ पीपल जो कि लीडरशिप रखेंगे, या जो लोग बहुत सारे लोगों पे इन्फ्लुएंस डालेंगे, राइट? तो एज पर कर्मा हम सबको कुछ ना कुछ टैलेंट स्किल्स मिले हुए हैं, और ज्यादा मटरली हम उनमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट, राइट ना? So in the modern times, we are being taught that we can do anything on our own, but we will find it is never going to happen like that. This is what is being told here, right? Now, just an example, a dog cannot run faster than a horse or the cheetah. Coolie cannot become food by any endeavor. So that's why we cannot change our material destiny significantly, right? उसमें ज़्यादा changes नहीं कर सकते. This is very important point, right? We discussed about Bill Gates and all those things, right? तो अभी आप बहुत ज़्यादा भी एफर्ट लगाओगे ना किसको करने के लिए, तो भी क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल भी जाएगा एक्स्ट्रा, आपके कोटा से थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा मिल भी जाएगा, बट आप देखोगे कि आप हैप्पीली नहीं रह पाओगे। दैट्स व्हाट शास्त्र सेज इज दैट मटेरियली हमको सेटिस्फाइड रहना सीखना चाहिए हमारी लाइफ में। जो भी हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं भगवान की तरफ से, उससे हमको संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू फोकस अपॉन द स्पिरिचुअल लाइफ। नॉट दैट इन द मॉडर्न टाइम्स वी आर टॉट दैट जस्ट ट्राई टू कलेक्ट मोर एंड मोर रिसोर्सेज इन द लाइफ, राइट? उसके लिए आपको जितना भी मेहनत करना पड़े, 10 घंटा 12, लाइक इवन इन कॉर्पोरेट लाइफ नाउअडेज व्हाट इज द कल्चर, people are ready to work very very hard just like donkeys, कंपनी उनको 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देती है पर मंथ, उसके लिए 14 घंटे पहले जॉब करते थे, अभी 16 घंटे के लिए रेडी हैं, अभी 18 घंटे के लिए रेडी हैं, 19 घंटे के लिए रेडी हैं। लिटरली देयर आर पीपल लाइक दैट, so shastra says that we should not live our life like this, because we should go for an optimum job, because our body, our mind, we have an optimum capacity समझते हैं, मतलब जिस कैपेसिटी से ज्यादा आप करने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा, आप हैप्पी नहीं रह पाओगे, बैलेंस नहीं रह पाओगे, और स्पिरिचुअल लाइफ तो भूल ही जाओ आप। तो व्हाट शास्त्र सेज इज कि हमें ऑप्टिमम काम करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल हैव आवर लिमिटेड, वी ऑल आर बीइंग प्रोवाइडेड विद लिमिटेशंस ऑफ आवर बॉडी, इंटेलिजेंस, माइंड, so we should be satisfied with whatever position we are into, and we should try to focus upon the main business of life, that is spiritual life. Okay, so this is very important point to understand, that how we will find that material destiny में हम ज़्यादा changes नहीं कर सकते हैं. This is very important point to understand, because we are being provided it. Prabhupada gives one example also here, right? One of you read this. We see so many men working so hard. Does this mean that every one of them will become a Ford, a Rockefeller? Why not? Everyone is trying his best. But Mr. Ford was destined to become a rich man. His destiny was there, and so he became a rich man. You cannot change your destiny simply by working hard like asses and dogs.
No, but you can utilize your special human energy for improving your Krishna consciousness. Yeah. So material destiny में आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल डेस्टिनी है वो आप डिफाइन कर सकते हो. दैट इज द पॉइंट यहाँ पे, राइट ना. So that is what is being told, right? So देखो दो रोड्स हैं. There's a road of material life, there's a road of spiritual life. Okay. तो जो material life का जो रोड है उसमें आपके पास में लिमिटेशंस है. जो आपके प्रीवियस डेस्टिनी के हिसाब से जितना मिलना है उतना ही आप एक्यूमुलेट कर पाओगे इस वर्ल्ड में, ज्यादा नहीं कर पाओगे, राइट. लेकिन जो आपका स्पिरिचुअल वाला रोड है उसमें आप बिना किसी लिमिटेशन के मूव कर सकते हो, राइट. व्हिच मींस व्हाट, everyone has the opportunity to go for spiritual success, as much spiritual success as one can have. See, everyone can read Bhagavad Gita, everyone can chant Hare Krishna, everyone can worship the Lord, everyone can serve the Lord, right? In the Shastras we find many examples. Even the birds and the animals also are given this opportunity. Even the demons are given this opportunity, right? To see, we hear about Jatayu, right? You hear about the Prahlad, who was born into the demon family. तो जो भक्ति जो है स्पिरिचुअल लाइफ है वो सबके लिए ओपन है, उसमें किसी तरह का लिमिटेशन नहीं है. As much as you want to advance, you can advance in your spiritual life. There is no limitation in the path of bhakti. But on the material destiny, there is a limitation. जितना आपके destiny है उसी के हिसाब से आपको मिल पाएगा. That is what Prabhupada is mentioning here. Okay. So this is the beauty of the path of bhakti. And it is very easy also to progress in the path of bhakti. It is very easy, not much difficulty. Very simple. Just chant Hare Krishna. Understand the spiritual knowledge. Right. Further, Prabhupada says another example. Read. Prabhupada told of a man he knew in Allahabad who was a PhD, yet he could not get a job. The man was manufacturing soap bars at home and going by cycle every day to sell them in the market. Although he had a PhD, he was living like a coolie. He mentioned that Mr. Modi, the founder of Modi Nagar, was not an educated man, but he had 50,000 people working for him. Prabhupada emphasized that therefore one should not make much endeavor for economic advancement, because whatever one is due, either success or failure, is already decided. Getting a PhD will not change that. One should simply try to become Krishna conscious. So ये इलाहाबाद का एग्जांपल प्रभुपाद दे रहे हैं. 1970s में जब 60s में जब प्रभुपाद यहाँ पे रहते थे तब का बता रहे हैं यहाँ पे. समझे आपको एग्जांपल? नहीं समझ में आया? There was a PhD person. Nobody was ready to give him a job. So why he was not why people were not ready to give him job? Everyone was saying कि आप हमारे जॉब के लिए ओवरली क्वालिफाइड हैं. देखो अंडर क्वालिफाइड लोगों को भी नहीं लिया जाता है और ओवर क्वालिफाइड लोगों को भी नहीं लिया जाता है, राइट. लाइक टुमारो व्हेन यू विल सिट फॉर प्लेसमेंट्स आल्सो, सपोज यू हैव वेरी गुड पॉइंटर, यू हैव वेरी गुड नॉलेज, तो कुछ एवरेज पैकेज वाली जो कंपनी आएगी ना वो आपको नहीं लेगी, पर्पसफुली वो नहीं लेगी. क्यों? क्योंकि दे नो दैट यू हैव अ बेटर पोटेंशियल, यू विल बी एबल टू गो फॉर बेटर जॉब. तो आपके साथ टाइम पास क्यों करना अननेसेसरी? अभी वो आपको रिक्रूट कर लेगी और कल क्या होगा जब फाइनल ज्वाइनिंग का टाइम आएगा तब नहीं रहोगे, आप किसी दूसरे कंपनी में चले जाओगे. गेटिंग ना, इसलिए ये भी होता है. आप पूछ लेना कॉलेज में ऐसा होता है रिक्रूटर्स. सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर इनटू एचआर बिजनेस, सो दे से दिस थिंग, राइट. तो वो भी क्या है, जो कंपनी जितना पैकेज ऑफर कर रही है, जिस प्रोफाइल के लिए दे रही है, उसके हिसाब से कौन उसमें सटीक बैठेगा उन्हीं लोगों को चूज करती है. समझे आपको ये वाला पॉइंट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो एनीवेज कहने का क्या मतलब था, तो he was not able to get job because people were telling कि आप overly qualified हो हमारे वाले जॉब के लिए, राइट. तो अल्टीमेटली बेचारे को क्या करना पड़ा, ये सब करना पड़ा, राइट. अभी भी आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने, देखो कई लोग हैं आप देखोगे, लाइक many of them they have done something but they land up nowadays especially I have seen many engineering every year, so many people are becoming engineers and all, right. Those of them who are into good institutes, they have good prospects, otherwise बाकी लोगों के पास कोई खास prospects नहीं रहता है. In the last 1 year Modi has closed 500 engineering colleges, this. क्योंकि उनका जो था, पहली बात तो इतना कुछ प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकल रहा है, और दूसरी बात है कि उनका जो रेपो भी था, जो उनका क्वालिटी था, वो भी बहुत वर्दी नहीं था. 500 इंजीनियरिंग कॉलेज लास्ट एक साल में बंद कर दिए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में. तो एनीवेज पॉइंट क्या है कि दिस इज द सेम थिंग Prabhupada is mentioning it, how one should not make much endeavor for the economic advancement. उसके लिए वो ज्यादा एडवांसमेंट के लिए भागदौड़ नहीं करना चाहिए, because whatever is due, that is already going to come in your life, right. In the Bhagavatam, Prahlad Maharaj gives one example. He says, Prahlad Maharaj in the Bhagavatam, कि कैसे जिस तरीके से हमारी लाइफ में do we pray for diseases or the distresses in our life. कभी कोई प्रे करता है कि भगवान सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत दिनों से थोड़ा बीमारी आ जाना चाहिए, थोड़ा सा परेशानी आनी चाहिए, क्यों ऐसा कोई प्रे करता है क्या? बट देखो रिपीटेडली आती रहती है हमारी लाइफ में चीजें, राइट ना. Why? Because of our previous karma, because of the past reaction which we have done.
तो same way Prahlad Maharaj says a very beautiful thing in the Bhagavatam, that how just like we all get suffering in our life on its own accord, अपने आप suffering आती है हमारी लाइफ में, वैसे ही जो हमारे लाइफ में material happiness भी मिलने लिखी है वो भी अपने आप आएंगी. जब suffering अपने आप आ रही है तो happiness भी तो अपने आप आएंगी ना. So let's say Prahlad Maharaj says that how that's why we should focus upon our main business of life. As per our paap and punya previously done, they are going to come in our life. Happiness will come and distress will also come. But what is more important is that we try to focus upon spiritual life. That is most important. तो यहाँ पे इस चीज के बारे में बता रहे हैं, right ना? So in this world, everyone is teaching nowadays that just become, just go for a rat race, try to work very hard, try to, get so much money, try to go for a big bungalow, and for that is being seen as the purpose of the life, just to join this rat race. Rat race समझते हैं ना? अंधी चाल जो चल रही, right ना? The thing is that even if you succeed in a rat race, you are still a rat. Even if you succeed in a rat race, still you are a rat only, right? Which means what? One may succeed in all these things of life, but still, if one has not practiced spiritual life, then he's not going to have a good destination in the future. So that is what is being told. So that's what Shastra says about simple living and high thinking. That life should be devoted for simple living. It was not that at Vedic time people were not scholars and all. They were big scholars. They could have established big factories. जितना भी हम कर रहे हैं उससे बहुत सारी बड़ी factories वो start कर सकते थे. But they were satisfied. They were being taught to be materially satisfied. They knew that how we cannot make much change in our material happiness. आप देखोगे जो material से पता है आपको, this is a quantum of material happiness and material distress. Quantum मतलब की quantity. जितना आपके जीवन में भौतिक सुख मिलना लिखा है, जितना भौतिक दुख लिखा है वो फिक्स्ड है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो. Right? To give you one small example, let us say, for example, like let us say a person is earning suppose 50,000 rupees, and he has to work for suppose 10 hours. Nowadays 9 to 10 hours at least आपको भी work करना पड़ेगा जब आप company life में जाओगे तो. So now suppose he's earning 50,000 rupees and he has to work for suppose 10 hours now. Now he thinks that okay, let me work little more hard so that I can get more money and then I can have better prospects. So then he is getting an offer that okay, if you spend 3 more hours in the company, then you can get some maybe 20 more thousand, let us say. So now what will happen? Suppose this fellow is a foolish fellow. Now for the sake of this another 20 more thousand in the salary, he is ready to work 3 more hours per day, which means 13 hours per day, let us say, right ना? तो अभी क्या आपके पास मनी तो थोड़ा ज्यादा आएगा, तो मेंटल हैप्पीनेस बढ़ना चाहिए उसका? नहीं बढ़ेगा. क्यों नहीं बढ़ेगा? क्या नहीं फिर उससे हैप्पीनेस क्या बढ़ेगा? अरे हाँ, बैंक में मेरे पास अभी 70 पहले 50 आता था, अभी 70,000 पर महीने आता है, राइट? थोड़ा उसके कारण थोड़ा सी हैप्पीनेस क्या है, यही है, बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखते हैं लोग, उसको अपना हैप्पीनेस मान लेते, राइट? खाते उतने ही है, 2 चपाती ब्रेकफास्ट खाते थे, 3 चपाती लंच पे खाते थे. जब आपके पास सैलरी 50 to 70 रहती है तो क्या आपकी चपाती नंबर ऑफ चपाती बढ़ जाती है क्या? पहले 50 था, अभी 70 हो गया, अभी मतलब सुबह 4 चपाती लेना चाहिए, शाम को 6 चपाती, ऐसा होता है क्या? भाई nowadays all the more modern culture, just a bread of लोग के पास टाइम नहीं होता even to take a small sandwich also in the morning nowadays. So people's happiness is only in the mind, in the imagination that okay, I'm getting a bigger salary, right? So see, will it going to increase his happiness? You will find the happiness is not going to increase. Why? Can you tell how it is not going to increase the happiness? हाँ बोलो. Because उसके पास immediate free time नहीं होगा. हाँ, free time नहीं होगा. He has to overwork, tiredness रहेगी बॉडी में, राइट? तो पेन आएगा, राइट? जो थोड़ा पैसा ज्यादा मिला उसके कारण सपोज कोई अच्छा वो कुछ खाना पीना कर रहा है लेटर से, बट वो निकल भी जाएगा क्योंकि उसका पेन ही बढ़ गया ना, ज्यादा देर के लिए काम करना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा और बीमारी हो जाएगी, सफरिंग बीमारी होगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाइयों का खर्चा निकल जाएगा, राइट? सी उसके कोटा में लिखा था 50,000 रुपए, अब उसने 20,000 थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, तो होगा क्या, वो जो 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो चला भी जाएगा. कैसे चला जाएगा? कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ेगी पर मंथ के लिए, या फिर उसका कुछ घर पे कोई परिवार वाला कोई होगा जो सपोज लड़का होगा वो बिगड़ रहा है, वो कुछ पैसा निकालने लग जाएगा, राइट? तो एक्चुअल में दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज बीइंग डिजाइन्ड. यू विल फाइंड जितना आपके पास कोटा में लिखा है उससे ज्यादा आप कोशिश करते हो लेने का, तो वो बाकी जगह पे किसी और जगह पे चला जाता है और उसके लिए काफी हेवी प्राइस पे करना पड़ता है नेसेसरली. दैट्स व्हाई पीपल न्यू दिस साइंस अर्लियर. नाउडेज पीपल थिंक दैट वी कैन चीट एंड ऑल. स्पेशली कोई अगर अधार्मिक तरीके से पैसा जैसे इकट्ठा करता है उसकी लाइफ में, आप देखो कोई बहुत अधार्मिक काम करके पैसा इकट्ठा करता है ना, आप देखोगे उसकी लाइफ में देखना या तो कुछ कोर्ट केसेस चलेंगे, ये सब होता है, कोर्ट केसेस होंगे, या फिर उसके कोई फैमिली मैन का आप देखोगे उसका कुछ बहुत क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी जिसके कारण उसका बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हो जाएगा. लाइक दैट द थिंग्स गोज इन दिस मेटल वर्ल्ड. यू कैन नॉट अवॉइड एक्शंस एंड द रिएक्शंस. इवन न्यूटन आल्सो टोल्ड ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट?
So this is what is being told. That's why Shastra says that try to go for a simple life. Try to learn satisfaction. The satisfaction will not come from the external things. The satisfaction is going from the internal things. Satisfaction is a matter of heart. It's an inner thing. So Shastras, that's why Shastras taught people to be materially satisfied. Whatever you are able to easily get for yourself, try to have it in your life and be satisfied and focus upon the main business of life. That was a Vedic teaching, right? And because now there's no more Vedic education, there's no more spiritual education, then the only domain remains for us is the material life. And then everybody is just thinking that, okay, to get something more and more in the material life is all in all of the life, right? That's why everyone is working for that, but are everyone able to become happy, satisfied? नहीं होने वाला है. This is what is being told, right? Prabhupada is giving another example. ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा इस example से, right? Prabhupada, the beauty of Prabhupada, no, very wonderful, very hitting example Prabhupada gives. This is a very beautiful example to understand that how our material happiness is restricted. We cannot enjoy material happiness beyond the quota allotted to us. See, read the example. According to the different types of body, There are some external differences in the pleasure, but the basic amount and quality of this pleasure has very well defined limitations. That is called destiny. A pig has a certain type of body, and his eatable is stool. This is destined. You cannot change it. Let the pig eat halwa. That is not possible because the soul has a particular type of body. He must eat a particular type of food. Can anyone and any scientist improve the standard of living of a pig? Is it possible? Yes. So what Prabhupada is mentioning here कि जो हमको बॉडी मिल गया है ना, उस बॉडी के साथ में हमें जो प्लेजर मिलने वाला है वो डिफाइंड हो जाता है. गेटिंग ना? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जांपल है हॉग का. हॉग में सुअर समझते हैं ना, सुअर. नाउ व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर द सुअर? इन व्हाट थिंग्स ही गेट हैप्पीनेस? In eating the stool, right? He's always looking for the hot stool here and there, right? Now if you think that, oh, you know, let the hog become advanced, let us have an economic development plan for the hog, right? So and then you want to give him, you know, क्या बनाया था आपने आइटम्स यहाँ पे? Somas, right? Somas, right? Somas, right? So if you want to feed your hog Prabhu, and try to become advanced now, let us say was somaras. What do you say? Will the hog be more attracted towards the somaras? No, because the nature has awarded him the body of a hog. As soon as you get a metal body, the pleasure is already defined for you. समझ में आपको, राइट? जैसे सपोज किसको हमें जो भी बॉडी मिला ना, बॉडी के साथ में देखो प्लेजर डिफाइंड हो जाता है बेस्ड अपॉन अवर कर्म, राइट? फॉर एग्जांपल एक चीज, आप में से कितने लोग जिसको करेले का सब्जी अच्छा लगता है? ऑनेस्टली बताना ना, राइट? कितने लोग जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? ओके, भिंडी, कितने लोगों को भिंडी बहुत अच्छा लगता है? कितने लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? दूध, कितने लोगों को दूध पीना अच्छा लगता है? कितने लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? तो देखो ये सब डिफरेंसेस है ना. तो हमको जो मटेरियल बॉडी मिला है बेस्ड अपॉन अवर कर्मा, उसके हिसाब से ऑलरेडी उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफाइंड हो रखी है. समझ में आया आपको? आप उसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते. आप बोलो कैसे मुझे करेले का सब्जी अच्छा लगता है, मेरे को भी करेले का सब्जी अच्छा लगना चाहिए, आप हर दिन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो खाने के लिए. इट विल नॉट वर्क इट आउट. So this is what Prabhupada is mentioning here. Let's see what it is telling. Because the soul has a particular type of body, he must eat a particular type of food. Can anyone, any scientist improve the standard of a living of a pig? Is it possible? Right? So we cannot improve the standard of living of a pig. Same way, you know, all of us have also got material bodies. Along with our material bodies, the amount of pleasure which we can get and the type of pleasure which we get from the body, that is also defined for us. You cannot make much difference into that thing. So I can give another example, you know, like, you know, Bangalore. You know, Bangalore is known as the Silicon City of India, Silicon Valley of India, right? Silicon Valley पता है आपको? अमेरिका में you have that software hub जो है आपका. तो वैसे बैंगलोर को बोला जाता है Silicon Valley, right? तो वहाँ पे क्या है? There are big industries are there. All the major IT firms are having their centers there, okay? And then the government of Karnataka, they thought कि let us make Bangalore a very posh city. तो उन्होंने पूरा प्लानिंग किया कि जो भी यहाँ पे स्लम में रहने वाले लोग हैं, स्लम वाले जो भी लोग हैं, झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, उन सब लोगों को हम यहाँ से हटाते हैं, उन सबको हम अच्छे थोड़े कुछ छोटे फ्लैट बना के दे देते हैं ताकि वो लोग रहें और ताकि स्लम ना हो. लेट इट बी अ वेरी पॉश सिटी, लेट इट बी अ वेरी क्लीन सिटी. तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्ली फ्लैट बना के उनको छोटे फ्लैट बना के दे दिया. उनको बोला स्लम वालों को कि देखो भाई तुम सबको हम यहाँ फ्लैट दे रहे हैं, तो ये स्लम वाला एरिया खाली करो और आप सब वहाँ पे चले जाओ, राइट? तो सबको अलॉट कर दिया. बट यू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर 1-2 months, व्हाट दिस पीपल डिड, उन्होंने क्या किया, वो जो फ्लैट मिले थे उनको किराए पे चढ़ा दिया और वो लोग वापस जाके स्लम में रहने लग गए, राइट?
this is the real thing which happened, you know. क्यों मतलब इसको ऐसा क्यों है? हाँ, क्यों है वो हैबिट? व्हाट इज द मेन कॉज? क्योंकि भाई किसको अच्छा नहीं लगता है साफ सुथरे फ्लैट में रहना, उसमें रहना क्यों पसंद आएगा उसको? हाँ, दिस इज द पॉइंट। हरि बोल फॉर कार्तिक प्रभु। क्योंकि देखो क्या है, उनके कर्मा में लिखा है कि उनको उस तरीके का लाइफ ही जीना है, राइट? अभी आप उसको आर्टिफिशियल ट्राई करते हो चेंज करने का भी, बट वो चेंज नहीं होने वाला है, राइट? तो देखो आपने बना के भी दिया उनको, इसलिए बता रहे हैं कि जो मर्डल डेस्टिनी के साथ आप ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हो लोगों के। समझ में आपको ये वाला पॉइंट? तो उनके कर्मा में लिखा है कि उनको झोपड़पट्टी वाला लाइफ जीना है, उस तरीके का मिजरेबल लाइफ जीना है, तो आप अगर आर्टिफिशियल ट्राई करोगे उनको हेल्प भी करने का, अगेन वो देखो उन्होंने वापस क्या किया, झोपड़पट्टी में आ गए कि नहीं आ गए? दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज मेंशनिंग है कि देखो जिस तरीके का हमारे कर्मा के हिसाब से ऑलरेडी कितना मेंटल हैप्पीनेस मिलना है वो ऑलरेडी डिफाइंड हो गया हमारी बॉडी के साथ में, आप उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। डज इट मेक सेंस? समझ में आया आपको वाला पॉइंट? इट्स अ टू केस स्टडी, आप देख सकते हो उसको। वैसे ही होता है, आप देखोगे ना, एवरीथिंग इज लाइक बेस्ड अपॉन द कर्मा। ऐसे से आप देखो क्या है, when we discuss shastras na, see why we are inspired to practice the shastras. This is one of the thing, because we can see the shastras working in our daily life. It's not theoretical, you'll find they're practical, they're visible. That is the meaning of shastra chakshu, to be able to see the world with the eyes of the shastras, with the wisdom of the shastras. That's why one can very easily derive one's faith upon the shastras, you know, because you can see the things happening, you know, you get answers to your questions, you can see why, you get the basis to understand the things of this world. खैर तो ये बता रखा है इसमें ना। So see, this is what Prabhupada is telling. The quantum of the pleasure and the pain is prefixed at the birth, right? तो देखो क्या है, once you can read it, then I will explain. Right? Quantum of pleasure and pain is prefixed at birth. Srila Prabhupada. Destiny allows only a certain amount of material happiness in this world, and our efforts should therefore be directed towards self-realization. Nobody is enjoying uninterrupted material happiness. That is not possible. Just as you cannot check your distressing condition of life, similarly, you cannot check your happy condition of life. It will come automatically. Therefore, don't waste your time with these things. Better, you utilize your energy for advancing in Krishna consciousness. See what Prabhupada is mentioning here? Destiny allows only a certain amount of material happiness in this world, and our efforts should therefore be directed towards self-realization, right? तो see, destiny क्या करेगी आपको? एक amount of happiness ही देने देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। For example, like देखो, अभी जो झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, उनके कर्मा में नहीं लिखा है वो फ्लैट वाले सुख को एक्सपीरियंस कर पाना। आप आर्टिफिशियल उनको हेल्प भी करने की कोशिश करोगे, फिर भी वो आप देखोगे कि उसी में चले जा रहे हैं। तो ये दिस इज व्हाट, क्योंकि वो आपका लिमिट करती है, जो हमारी डेस्टिनी है वो लिमिट करेगी आपकी मेंटल हैप्पीनेस, राइट? सिमिलरली जैसे पिग है, अभी पिग क्या है, ही विल बी एबल टू डिराइव प्लेजर ओनली इन द ईटिंग ऑफ द स्टूल, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हिज डेस्टिनी इज ऑल अबाउट। तो अभी ही इज लिमिटेड बाय दैट वे, तो इससे आप ज्यादा उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। लेट्स से वन शुड एम एट सेल्फ रियलाइजेशन, दिस व्हाट प्रभुपाद इज मेंशनिंग। एंड प्रभुपाद यहाँ पे और जो बता रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया राइट ना, दैट यू नो nobody can enjoy uninterrupted mental happiness, right? अब देखो कि इस लाइफ में ऐसा नहीं होता है किसी का कि हमेशा सुखी सुख मिल रहा है उसके जीवन में। See, we have a you know, हमारे पास बैंक अकाउंट्स हैं, you know, we have a पाप अकाउंट and we have a पुण्य अकाउंट। तो क्या देखो, in our journey in this material world, we all have been doing different activities, and for all of them we are getting पाप और पुण्य we have got, okay? तो वो सारा एक बड़े से अकाउंट में एक you know स्टोर होके रखा हुआ है, और हर एक लाइफ में हमको कुछ अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और कुछ अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस जो होता है वो दिया जाता है। लाइक जैसे सपोज एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल जैसे सपोज आपने आटा, जब हम गूंदते हैं ना आटा, आपने बड़ा सा जब आटा करते तो पूरा एक बड़ा सा आटा आपने गूंदा, राइट? तो दैट इज लाइक उसको बोलते हैं संचित कर्मा। संचित कर्मा मतलब कि जो आपका टोटल कर्मा आपने इकट्ठा किया है इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में, पूरा पाप और पुण्य, उसको बोलते हैं संचित कर्मा। इट्स लाइक अ बिग आटे का बॉल, ओके? अभी हम जब रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉल निकालते हैं और फिर उससे रोटी बनाते हैं। वैसे क्या है, हर एक लाइफ में हमको भी हमारे संचित कर्मा से कुछ पार्ट दिया जाता है, हैप्पीनेस का, कुछ डिस्ट्रेस का, कुछ पाप और पुण्य का हमको मिलता है स्टॉक एक लाइफ में भोगने के लिए। उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा, राइट? जो हमको मटेरियल बॉडी मिलता है, जो पेरेंट्स मिलते हैं, जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस आने होता है लाइफ में, दैट इज कॉल्ड एज प्रारब्ध कर्मा। तो हर एक लाइफ में, और साथ ही साथ में हम हर लाइफ में कुछ नया फ्रेश कर्मा भी क्रिएट करते हैं, राइट? अभी जो हम अपना एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे वापस संचित कर्मा में ऐड होता रहेगा। सुनना है आप लोगों को? क्योंकि अनदर एग्जांपल ऐसी हाउ इट इज,
जैसे मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, तो नाउ यू हैव अ बैंक अकाउंट जिसमें कि मनी आपने स्टोर करके रखी हुई है, दैट इज लाइक द संचित कर्म। संचित मतलब कि इकट्ठा करके जो रखा हुआ है, राइट। अभी आपने उसमें से कुछ पैसा निकाल के अपने पास रखा है पॉकेट में, नो, फ्री कैश जिसको बोलते हैं, राइट। दैट इज लाइक द प्रारब्ध कर्म, जो आपने इस लाइफ टाइम में जो आपको हैप्पीनेस डिस्ट्रेस मिलना है, आपको इस लाइफ टाइम के लिए भगवान है। सिर्फ भगवान का कैसा अरेंजमेंट रहता है, आपको हर एक लाइफ में कुछ हैप्पीनेस और कुछ डिस्ट्रेस दिया जाता है। अगर मान लो सिर्फ आपका लाइफ पूरा दुख भरा ही रख दिया जाए, सिर्फ डिस्ट्रेस ही रख दिया जाए, राइट, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो इसलिए बाय द अरेंजमेंट ऑफ गॉड, गॉड हैज मेड एन अरेंजमेंट कि हमारी लाइफ में देखोगे कुछ हैप्पीनेस रहती है, कुछ डिस्ट्रेस मिलती है, राइट। कुछ समय हम हैप्पी रह पाते हैं, फिर कुछ डिस्ट्रेस आ जाते हैं, फिर वापस थोड़े समय के लिए हैप्पी रहते हैं, राइट। सुख दुख का मेला रहता है ये संसार, करेक्ट। ऐसा क्यों, ताकि हम इस मटेरियल लाइफ में बने रहें, राइट, परेशान, मतलब बहुत ज्यादा सुसाइड ना कर दे कमिट करने के लिए। तो दैट इज लाइक द फ्री कैश जो हमारा प्रारब्ध कर्म होता है ना। और साथ ही साथ में क्या है, सपोज आप अर्न कर रहे हो, तो आप अपना, आपकी जो अर्निंग होगी वो भी आपके बैंक अकाउंट में ऐड होगी ना। वैसे अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी हमारे अकाउंट में ऐड हो रहा है संचित कर्म में, उसके हिसाब से हमारा फिर आगे का लाइफ डिफाइंड होगा। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि nobody can enjoy uninterrupted material happiness, see this is not possible। एंड यहाँ पे बता रहे just as you cannot check का मतलब stop, just as you cannot stop your distressing condition of life, similarly you cannot check your happy condition of life, right। तो वही प्रहलाद महाराज ने जो बोला ना, वही बता रहे हैं प्रभुपाद की, जैसे दुख अपने आप आते हैं हमारे जीवन में, उसको हम स्टॉप नहीं कर पाते, वैसे सुख भी अपने आप ही आते रहेंगे, आप देखोगे, इट विल कम ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाई डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स। इसलिए क्या है, इसे बोलते हैं ना, सुख में बहुत सुख ही नहीं होना चाहिए, दुख में बहुत दुख ही नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ना, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, टेम्पररी है, ये सब आएंगी चली जाएंगी, राइट। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, to utilize your energy for advancing in Krishna consciousness, right? So generally, this material world, people think that, oh, material pleasure is everything. I can just enjoy my life the way I want to, you know. And people think that everyone else is enjoying more. Everyone thinks that, oh, others are enjoying, I can also enjoy like them. But the reality of life is that nobody is enjoying in this world. Everyone is bearing his own karma. Some happiness they get, some distress they get. ये material world एक बड़ा illusion है, you know. एक story आपको बताते हैं, Prabhupada used to tell the story. The story of a 25 पैसा circle. सर्कस। एक बार की बात है ना, एक गांव था, आपने देखा है वो ओपी सरकार, वो होते हैं ना, देखा है आपने, जो नहीं होते हैं सर्कस वाले, नहीं होते हैं, देखा है कितने लोगों ने सर्कस लाइव देखा है जाके, घोड़े एलिफेंट सब देखा है ना। ओके, तो एक गांव था, एक बार गांव में क्या हुआ कि गांव में वो सारे जो सर्कस वाली पार्टी गांव में आ गई, ठीक है, और बड़ा सा टेंट वेंट लगा दिया उन्होंने मैदान में, है ना, और वहां पे पूरा इश्तिहार लगा दिया कि पहली बार अब तक की हिस्ट्री में पहली बार हम सिर्फ 25 पैसे में सबको सर्कस दिखाएंगे। तो गांव वाले बड़े खुश हो गए कि अरे 50 रुपीज का टिकट लगता था पहले, कभी भी हमने किया है, बट इस बार तो बहुत स्पेशल कंसेशन आया है, 25 पैसे में आपको सर्कस देखने को मिलने वाला है। तो सारे लोग बड़े खुश थे, और अगले दिन से स्टार्ट होने वाला था सर्कस देखने का। टाइमिंग भी अलॉट कर दिया था, 10 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक चलता रहेगा वो सर्कस, राइट। तो पूरे गाँव के सारे लोग सर्कस देखने के लिए सुबह सुबह 10 बजे लाइन लगाना स्टार्ट कर दी, राइट। बट क्या था कि सर्कस में ये था कि एक एक आदमी बस अलाउ कर रहे थे एक बार जाने के लिए, राइट। एक आदमी जाएगा, वो सर्कस देखकर फिर वापस आएगा, फिर दूसरा आदमी जाएगा। That was the way it was being built. So everyone was very excited कि 25 पैसे में पहली बार सर्कस देखने को मिल रहा है। So they made a big line, and then the first person's chance came. शिवांश पवार ने भी है, he was very excited कि अरे सर्कस देखने को मिलेगा, राइट। तो आदमी गया ना, ठीक है, आप नहीं थे वो, ठीक है, तो आगे वाला पार्ट थोड़ा खौफनाक है। तो पहला व्यक्ति बड़ा एक्साइटेड था, राइट। He thought that I am the first one to experience this circus, I am also going to make a history. So like that he went. So पहला पर्सन था, वो गया अंदर सर्कस के लिए, राइट ना। अंदर गया, अंदर जाके देखा कि कुछ दिख ही नहीं रहा है ना आसपास में, तो थोड़ा चिल्लाया वाला कि अरे कहाँ है, क्या है, राइट। तो फिर वहां से 2-3 बड़े हेल्दी लोग आ गए, नीतीश को की तरह, सब तेल लगाया हुआ था, उन्होंने पूरा मना कर दिया, और फिर उन्होंने एकदम जोरदार उसके फर्स्ट क्लास पिटाई की, राइट। मतलब बेटा सर्कस देखना है, 25 पैसे में देखते हुए दिखाता है, बहुत पिटाई किया उसका अच्छे से, राइट। इधर उधर लाते घुसे सब मारा उसको। फिर उसके बाद में फिर 5-10 मिनट के लिए उसको ब्रेक दे दिया रिलैक्स होने के लिए, और फिर बोला जा बाहर जाओ। तो फिर वो वापस आया। अब जब वो बाहर आ रहा था, सोच रहा था कि अरे, जैसे वो बाहर आने लगा तो दूर से लोग देखने लगे, अरे अरे आ गया सर्कस देख कर आ गया, राइट। तो बाकी लोग बड़े एक्साइटेड थे कि अरे बताओ क्या देखा तुमने, क्या देखा। तो इसने सोचा यार कि है ना, सब लोग बड़े एक्साइटेड थे, अब बताऊंगा कि मेरे को क्या मिला है अंदर, तो ये लोग मुझ पे हंसेंगे कि अरे देखो देखो क्या मारपीट खाकर आ गया, है ना, ठीक है, सबको मजा चखने देता हूँ ना। अरे बोला क्या शो था यार, ऐसा शो था ना, बाप रे, मस्त यार, मजा आ गया, एकदम लाइफ का मजा आ गया ना, इसको तो मिस ही मत करो यार। बाकी सारे लोग भी बड़े एक्साइटेड हो गए, ओ क्या बात है, दिस वंडरफुल, वेरी नाइस,
तो दूसरा जो बंदा था वो भी अंदर गया, देन ही वेंट इनसाइड, उसने भी देखा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर वो भाई आगे थोड़े हेल्दी लोग आए, उसकी अच्छे से पिटाई विटाई किया, फिर वो सोचा यार जो पहले वाला आदमी था वो तो कुछ और बता रहा था कि अंदर कुछ अमेजिंग सर्कस वर्कस देखा, हाथी देखे, घोड़े देखे, बट यहाँ तो ये दिख रहे हैं, दुष्ट लोग ही दिख रहे हैं हमें तो लगा शायद हो सकता है कि मेरे को एक्सपीरियंस शायद थोड़ा डिफरेंट हो गया मेरा, पहले अच्छा एक्सपीरियंस लेके गया बट मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो गया, बट अभी बाहर जाऊंगा सबको बताऊंगा तो फिर मुझ पे लोग हंसेंगे, है ना। और हो सकता है कि शायद मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं मिला, पहले वाले को सही मिला होगा, बुरा किस्मत है मेरा शायद, तो वो बाहर आया, वो अरे यार बहुत अच्छा है यार, जाओ जाओ मस्त है, फर्स्ट क्लास मजा आ जाएगा, राइट। बाकी बाहर वाले लोग बड़े एक्साइटेड, अगेन तीसरा आदमी गया, उसकी भी पिटाई विटाई हुई वो भी सोचा यार कि शायद मेरा बुरा एक्सपीरियंस रह गया, रखते हैं बाकी लोग तो अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे थे, शेयर कर रहे थे, शेयरिंग बहुत अच्छा कर रहे थे वो लोग तो ठीक है शायद मेरे बुरी किस्मत होगी, और सोचा कि सबको बताऊंगा तो मजाक उड़ाएंगे, उसने भी नहीं बताया, तो ऐसे करके करते सारे गांव वाले लोगों ने सर्कस देख लिया। So this story was being told by the guru of Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Thakur, and he used to tell a very important lesson. There are some important lessons in this story. Can you tell what is the important lesson? The whole villagers, they got to see the circus. Everyone got beaten. So what are the lessons we can learn from this story? Gautam is the first one to raise the hands, right? Give him the mic. इसमें हो सकता है एनालॉजी बनाई गई हो, सर्कस को मटेरियल वर्ल्ड से कंपेयर किया गया हो, तो सब बाहर आके यही कह रहे हैं कि बहुत एंजॉय किया हमने, जबकि उनने कुछ एंजॉय नहीं किया। हाँ, this is one thing we can see, right? This material world is also like a circus, right? यहाँ पे भी आप देखोगे हर एक को बीटिंग मिलता है, right? Everyone has to go through sufferings, correct or not, right? Stress, depression, cutthroat competition, this आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, right? Birth, old age, disease, that repeatedly everyone has suffering, right? और बीच में थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट देते हैं, right? थोड़ा बहुत कुछ कुछ सुख भी मिलते रहता है, right? ना, but everyone, so this is one thing, that how everyone is suffering in this world, but everyone tends to think that maybe I am only suffering, others are very happy. Just like the people outside or the person who got beating, he was thinking that अरे I think जो पहले वाले लोग थे सब हैप्पी हो गए यार, लगता है शायद मेरी किस्मत थोड़ी फूटी थी शायद, इसलिए मुझे पिटाई पिटाई हुआ है। तो same way in this world also, people see each other and they think that अरे everyone is enjoying so much, and they think that okay, it is only me who is not able to experience enjoyment, it seems, right ना, like शायद मैं थोड़ा कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलता है। और बाकी लोग भी सब जो पिटाई खाते हैं बट पिटाई दिखाते नहीं है सब, राइट। they think that they also say that अरे कैसा है यार, बहुत अच्छा हो यार, बहुत अच्छा हो यार, क्या अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है बट बहुत अच्छा है यार, करेक्ट। So that is how this material world, that's why this is a place of illusion, right? Everyone is unhappy, everyone is having struggling, they're struggling with their egos, they're struggling with anarthas, they're struggling with lust, greed, anger, envy, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, birth, old age, disease, that सब सफर कर रहे हैं, बट सबको लगता है कि अच्छा जो है, राइट। अभी देखो कोरोना चल रहा है ना, देखो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से बहुत सारे बिजनेस ठप है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ठप है, राइट। ऑफ कोर्स बच्चे थोड़े मजे में हैं, बाकी सब तो परेशान है ना। अब जाके देखो कारोबार वारोबार सब चौपट पड़ा है, सफरिंग है ना, सच अ बिग सफरिंग। यू सी, एक छोटा सा वायरस, एक नैनोमीटर वाला वायरस आपका देखो लाइफ में इतना टेरिबल चीजें कर सकता है। So there's no real happiness in this material world, but everyone is into illusion, thinking that okay, others are enjoying so much, I can also enjoy so much, that is how. So this is one thing we can learn. Okay, good points. Or कोई point? Yes, Nitesh को. So one more point, like everyone wants to enjoy like the material things. They are cheap. Everyone is trying to enjoy these cheap things. So people think that material enjoyment can come cheap, right? Actually, material enjoyment does not come cheaply, right? You'll find what is the source of material enjoyment. Let us talk about the spiritual enjoyment and material enjoyment. Okay. What all things gives material enjoyment? Money. Earning money, is it easy or difficult to tell? Very difficult. Not difficult. It's very difficult. Right? You ask your parents, they know. बोलते बेटा तुम्हें पता नहीं है कि हमने कैसे पैसे कमाए, बोलते हैं ना पेरेंट्स, राइट। पढ़ाई करो, राइट। कितना मेहनत कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए, राइट, बोलते हैं ना, बिकॉज दे नो पहले पैसे का बहुत वैल्यू है। और क्या देता है मटेरियल एंजॉयमेंट? इंटॉक्सिकेशन, illicit sex, everything is costly or not? Very, very costly you will find. And what all things gives us a special happiness? Chanting. कितना कॉस्ट है हर दिन? आपको कितना पेमेंट लिया आपने इनसे चैंटिंग करने का? एक्स्ट्रा राउंड कर रहा है तो एक्स्ट्रा पेमेंट भी है क्या? क्यों? कितना शिवांश को कितना दे रहे हैं पेमेंट हर दिन चैंटिंग करने की? हाँ, दे रहे हैं क्या कुछ पेमेंट? ओके। और डांसिंग करने का कितना चार्ज है? हाँ, कीर्तन का भी चार्ज है? ओके, कितना है? चैंटिंग, कीर्तन, डांसिंग, फीस्टिंग, राइट, सब कुछ चार्जलेस, राइट। एटलीस्ट
ऑफ कोर्स प्रसाद के लिए थोड़ा पैसा तो देना पड़ता है, अदरवाइज तो बैंकरप्ट हो जाएंगे आप, क्यों? बट आप देखेंगे कि सी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कैन बी इजीली डिराइव्ड, राइट? Chanting is, nobody needs anything for chanting. One can do kirtans, one can hear Krishna's message, as per one's capacity, you will find. That's why, which is more costlier? Material happiness is more costly, you will find. That's why Prabhupada used to say that, नरक में जाना महंगा सौदा है, भगवत धाम जाना आसान चीज है, करेक्ट, राइट? बट फिर भी लोग पता नहीं मटेरियल में नरक में जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आप देखोगे. And is the point which he was mentioning about. तो आप देखोगे स्टोरी में बेसिकली पॉइंट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इज हाउ in this material world there's no real happiness and there's only false enjoyment, false sense of enjoyment shift in this material world. Everyone is getting the beating, but people are thinking that okay, हम लोग ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, हम लोग कुछ ना कुछ अलग से किसी न कैसे हैप्पी हो पाएंगे. एक्चुअली में कोई हैप्पीनेस नहीं है, बिकॉज सब कुछ जो डेस्टिनी के द्वारा अरेंज्ड है वही आप पा सकते हो, उससे ज्यादा पा नहीं सकते हो, राइट? तो हमको लगता है जैसे सपोज को देखता है अरे वो बहुत अच्छा से एंजॉय कर रहा है, but actually we don't know how much he's enjoying. Like for example, this Rockefeller, I gave you the example, right? No, he was the richest man of the whole world. So you may see that he must be very, very happy. He must be enjoying the life. No, you see closely his life. He's not even able to have pasta and pizza and what you have. He has to survive only on the soups. किसी दिन वो भी soup में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उसका हरी बोल. That's how it works, you will find. So externally, from distance, it appears that somebody is enjoying. But if you go closer, you'll find that there's no real happiness, right? I can give a real example. There was one boy. A real story with that. So now he was attracted towards some girl, very beautiful looking girl and all. And he got married and also with that girl, okay? Thinking that, okay, now I will have life, nicely enjoy, the life. But you know what happened? जब सुहागरात का दिन था, तो जब उसने पास में गया, तो देखा उसके गर्ल के मुंह से बड़ी यूरिन की बड़ी बदबू आ रही थी. बहुत तेज यूरिन की बदबू आ रही थी. उसने बोला ये कहाँ से बदबू आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है. तो गर्ल ने बोलना स्टार्ट किया, जैसे बोला तो देखा वो बहुत तेज बुरी बदबू आ रही है, राइट? कई लोगों का होता है मुंह में एक्चुअली स्पीकिंग ना. देन द गर्ल टोल्ड कि मेरे इसमें मुंह में बदबू वाली बीमारी है कि मुझे मेरे मुंह से यूरिन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है. मैंने बोला ठीक है चलो हम थोड़ा डॉक्टर को दिखाएंगे और इसका ट्रीटमेंट देंगे, राइट? तो उसने हजारों डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, दिखाया बट वो बीमारी गई नहीं. जैसे ही वो गर्ल के मुंह खोलती है तो बहुत तगड़ा यूरिन का बदबू आता है, राइट ना? तो ये बाहर वाले जो लोग हैं सब देखते हैं क्या ब्यूटीफुल वाइफ है इसके पास में, कितना फॉर्चुनेट है ये, राइट? तो वो लोग उसको बोलते हैं अरे वाह यार क्या सुंदर तुमने पत्नी पाई है, राइट? और ये बेचारा रोता है अंदर हाथ में, मुझे पता है मैं पास भी नहीं जा सकता, पास जाता हूँ तो इतनी बदबू आती है. गेटिंग ना? तो देखो क्या डिस्टेंस से दिखाई देता है इस वर्ल्ड में कि हम व्यक्ति एंजॉय कर रहा है, बट क्लोजली आप देखोगे सबके लाइफ में आप देखोगे कि देयर इज डिस्ट्रेस इन देयर लाइफ, देयर डिस्ट्रेस विल फाइंड, ओके? और चीजें इस वर्ल्ड में डेस्टिनी के हिसाब से अरेंज होती है. आपने देखा है कई बार कोई बहुत एकदम सुंदर सा चिट्टा लड़का है, राइट? और पत्नी क्या मिल गई उसकी छोटी सी 1.5 फुटिया, राइट? एकदम बदसूरत से, देखा आपने? और कई बार आप देखोगे कि है ना लड़का बेचारा ऐसे ही एकदम कोई खास ब्यूटीफुल नहीं है और बेचारे को लड़की मिली एकदम सुंदर महालक्ष्मी की तरह, राइट? देखा ना इस तरीके की चीजें इस मटेरियल वर्ल्ड में होती हैं. देखो क्या डेस्टिनी के हिसाब से सब चीजें अरेंज होती है इस वर्ल्ड में, आप देखोगे डेस्टिनी के हिसाब से ऐसे अरेंज होती है, राइट? So that's why destiny has a big role in this world. But in the ultimate sense, the point is that nobody can enjoy much in this material world. Material life cannot give you any enjoyment you will find. Only whatever quota of your enjoyment is there, that much only you can get. Even in the college also you will find. अभी किसने बहुत पूरे साल मेहनत किया था, चारों साल बहुत मेहनत लगाया, राइट? प्लेसमेंट का टाइम आया, कई बार कहता है शुरू में कोई कंपनी आगे सपोज 10 लाख के, राइट? उसने प्लेसमेंट ले लिया, राइट? बाद में 20 लाख की पीएसयू आ गई लेटेस्ट से, राइट? तो जो कम पढ़ाई के थे वो लोग उसमें प्लेसमेंट ले लेते हैं और वो लोग फिर इनकी तरफ हंसते हैं, अरे देखो हमने कम पढ़ाई किया, कम मार्क्स से बट तुमसे ज्यादा ले लिया, राइट? डेस्टिनी का खेल रहता है हर जगह पे, आप देखोगे. तो देखो क्योंकि उसके कोटा में उसने भले ही बहुत एफर्ट लगाया बट उसके कोटा में कितना था, 10 लाख का जॉब आने लिखा था, उसको 10 लाख का मिला, राइट? और जिसके कोटा में थोड़ा ज्यादा था, पुण्य का ज्यादा था, उसको बड़ी जो जॉब मिल गया, राइट? इससे क्या इन सब चीजों से ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए. जो मटेरियली हमें हमारे लाइफ में मिलना लिखा है उतना हमको मिल जाएगा एक्चुअली स्पीकिंग. सी वी हैव टू डू आवर ऑप्टिमम एंडेवर. फॉर एग्जांपल लाइक ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स नाउ, so we should study whatever is required, whatever minimum number of hours we should try to study very nicely. That's why Krishna says in the Gita, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि. Krishna tells that actually you should focus upon what? The results of your activities or your endeavors. Krishna is saying that just try to focus upon your efforts. Don't try to think about the results because results are not in your hands. Results are in whose hands? In Krishna's hands you will find. That's why we should try to focus upon our efforts, whatever best efforts we can. We have to have optimum efforts, right?
To maintain the body, we need to have some optimum efforts, right? But it should not be the goal of life. ना खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, right? जीने के लिए खाना चाहिए, right? But भौतिक जगत में क्या है? Because there is no special education, everyone is just जीने के लिए खाते नहीं है लोग, खाने के लिए जीते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे बता रहे हैं ना, तो देखो जो डेस्टिनी में लिखा रहता है उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा आप नहीं मिल सकता, right? This is what this clear to all of us. So let's say this proper is that destiny will allow only a certain amount of happiness in this world, and therefore our efforts should therefore be directed towards self-realization. This is very practical. Okay, again read this. Read. Turning a hut into a skyscraper. What's great about it? Srila Prabhupada. Sometimes people boast. We have gone from the hut to the skyscraper. Boast मतलब क्या होता है? बढ़ाई करना, प्रशंसा करना, right? Boasting. We have gone from the hut to the skyscraper. They think this is progress. But in the Vedic system of civilization, one thinks about how much he is advanced in self-realization. He may live in a hut and become very advanced in self-realization. But if he wasted his time turning his hut into a skyscraper, then his whole life is wasted, finished. And in his next life, he is going to be a dog, although he does not know it. That's all. Yeah. So you'll find modern times nowadays. बड़ी cities है ना, वहाँ पे आपको अगर 2 BHK का फ्लैट लेना है, आपको देना पड़ेगा कम से कम 40-50 लाख आपको अर्न करना पड़ेगा, right? So nowadays people they take loan, लोन ले लेते हैं 50 लाख सपोज उनका फ्लैट के लिए लगा, तो अगले 30 साल तक के लिए उनको लोन चुकाने के लिए काम करते रहना पड़ेगा, they have to pay that EMI, for next 30 years, like that. तो वो 30 साल तक उसकी EMI भरते हैं, and then the husband and wife they grow very old, and then tomorrow what is going to happen? They become very attached to the home because they have no special knowledge. And tomorrow after they will die, because they're attached to the home, they will again come back into the home only. They may not come in the body of a human being, they may come in the form of the rat or cat or dog or something like that, because of ignorance of the spiritual life. So that's why this is not appreciated, that one should not remain ignorant of the spiritual life, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के चक्कर में अपना जिंदगी नहीं होना चाहिए. That's the main thing. यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे. That's why in the Vedic civilization people were self-satisfied. Okay. So here is an important PPT. Read this. Material destiny cannot be appreciably changed. Spiritual progress cannot be checked. On the platform of soul, one's progress towards God cannot be checked by age, caste, literacy, poverty, etc. Example: Gajendra elephant, Jatayu eagle, child Dhruv, all have equal chance to advance towards God. तो we discuss already, right? Material destiny cannot be changed appreciably. ज़्यादा change नहीं कर सकते material destiny में. लेकिन जो spiritual progress है उसको कोई check नहीं कर सकता है, मतलब you can make as much spiritual advancement you want to make, right? For example, be the case, right? See, on the platform of the soul, one's progress towards God cannot be checked by the age, caste, literacy, poverty, etc. Right? That's how you know that Jatayu became devotee, Shabari became the devotee, Dhruv Maharaj also became devotee, right? So they were all able to have the spiritual life, and they were able to make progress in the spiritual life, right? जैसे यहाँ पे ग्राफ बता रखा है, ऐसे ये ग्राफ है मेटल प्रोग्रेस का. तो जैसे सपोज आपने इस लाइफ में बर्थ लिया है, तो ठीक है, आपने मेटल प्रोग्रेस किया, you accumulated lot of wealth, you tried to have big bungalows, तो इस लाइफ में आपने प्रोग्रेस किया, लेकिन क्या होता है, at the time of death again what happens is all your mental progress vanishes. जो भी आपने सब कुछ mental progress किया था, सब कुछ जीरो. आपने बीटेक किया, एमटेक किया, पोस्ट डॉक किया, उसके आगे भी पता नहीं कुछ होता है, तो आई डोंट नो, आजकल आपने सब कुछ किया, बट जब आपका डेथ होगा आपके सारी डिग्रीज पानी में, राइट? आपकी सारी वेल्थ पानी में. Again, when you take the next birth, again you have to begin new journey. Again you have to start from A for apple, B for boy. Again you progress, again you die, right? So this is going to happen in the material progress, right? But when you talk about the spiritual progress, the graph is ever increasing. That's what Krishna says in the Bhagavad Gita. Neha bhikramanaሾस्ते prattavayo na vidyate salpamapi asya dharmasya trayate mahato bhayat. That on this path there is no deletion, there is no depletion. We discussed, right? No depletion and no deletion. कुछ डिलीट नहीं होगा अकाउंट से, कुछ खत्म भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा. आपने अगर 20% किया है,
आपका अगले लाइफ में 21% से स्टार्ट होगा. That is the part, that's the beauty of the path of bhakti. Firstly, you will find for the spiritual progress there is no hampering. One can always continue one's spiritual progress, on and on. That's why you'll find that spiritual progress is of the utmost importance. You'll find भागवतम में बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे मिडिल प्रोग्रेस के लिए लाइक आपने देखा है बीहाइव होता है ना, बीहाइव मधुमक्खी का छत्ता, और सारी मधुमक्खियां होती हैं, वो जिंदगी भर मेहनत करके अलग अलग फ्लावर्स में जाके नेक्टर हनी कलेक्ट करके लेके आती हैं और उसमें डालती रहती है, राइट ना. पूरा एफर्ट उसी में लग जाता है पूरा उनका, उसको भरने के लिए. और होता क्या है, वन फाइन डे एक पर्सन आता है, धुआं करता है और सारी मक्खियों को भगा के पूरा का पूरा छत्ता ले लेता है. वैसे क्या है, भागवतम says that how in this world those who are ignorant people, they keep working very very hard to get more and more mental positions, and one fine day the death comes and it deprives everyone of all their acquisitions, isn't it, right? That's a foolishness. That's why life should not be simply spent around trying to go for mental progress. Life should be spent for spiritual progress. That's very important thing. That should not be neglected. Okay. Otherwise, you will be also like the foolish bee. इस वर्ल्ड में भी देखो आप लोग कर रहे हैं ना, बड़े बड़े एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, बट सी नेक्स्ट लाइफ का कुछ गारंटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं उनके लाइफ में. तो सी ऑफ कोर्स इस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो हमें एक बेसिक चीजें चाहिए हमारे मेंटेनेंस के लिए, राइट ना, बट दैट शुड नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ. Without compromising our spiritual duties, those things should go on in our life. Okay. Yeah, read. By material efforts, Material So here is a very interesting point. This is very important, interesting point you will find it. Read. By material efforts, material destiny cannot be appreciably changed. By spiritual progress, even material destiny can be changed. Consider a rat race between Luna Moped, Maruti and Benz. Can the Luna driver speed up and win the race by any amount of endeavor? See what it says is, by material efforts, material destiny cannot be appreciably changed, right? आप कितना भी एफर्ट लगा दो मटेरियली, बट आपकी जो मटेरियल डेस्टिनी होगी उससे ज्यादा आप नहीं पा पाओगे. ओके. लेकिन यू सी व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. अगर आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हो तो इवन भगवान आपकी मटेरियल डेस्टिनी को भी चेंज कर देते हैं, राइट. यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है. फॉर एग्जांपल लाइक वी डिस्कस एग्जांपल, राइट. लूना है, मारुति और बेंज है, राइट. अभी क्या वो तीनों को आप सेम स्पीड से भगा सकते हो? सपोज आपने एक रेस रखा है, लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल लाइक वी आर स्टेइंग इन इलाहाबाद, सपोज कानपुर जाना है हमको लेटेस्ट से यहाँ से, तो इलाहाबाद से कानपुर में हमने एक रेस करवाया, लूना के बीच में, मारुति के बीच में, बेंज के बीच में, राइट. क्या वो तीनों सेम स्पीड पे पहुंच पाएंगे वहां पे, या सेम टाइम पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, राइट. लेकिन एक तरीका है जिससे कि फॉर एग्जांपल लेटर से सबसे पीछे कौन आनी चाहिए? लूना, राइट ना. एक तरीका है कि जिससे लूना भी फर्स्ट आ सकती है. बताओ क्या तरीका है वो? हाँ, क्या करें, क्या करें? एक तरीका है, बताओ क्या तरीका है? दिव्यांशु को वहां से एक प्लेन लेकर आए, लूना वाले को उठा दें और भाग के वहां पे ले जाएं, तो बताओ हो सकता है ना? दैट इज द ओनली वे. सेम वे यू सी व्हेन वी आर trying to go for spiritual progress in our life, when we get Krishna in our life, then what will happen? Then ये जो considerations होता है ना हमारे limitations का, materialistic का, वो भी change हो जाते हैं. समझे आपको? भगवान को किसी भगवान के कंट्रोल में सारी चीजें है ना. तो अगर हम spiritual progress के लिए work करते हैं, then by the interference of Krishna even interferes with our material destiny, and even he can change our material destiny. Indeed, it is being done by Krishna. जो भी devotees होते हैं उनके लिए कृष्णा उनके material destiny को भी इस तरीके से orchestrate करते हैं ताकि they can make a very wonderful spiritual progress. For example, like Sudama now. Now Sudama, as per his destiny, he was a poor Brahmana, right? But Krishna entered into his life and Krishna made him wealthy, right? Pandavas, they were only 5 of them, and the Kauravas were 100. Their military strength was also very, very big. But because Krishna has interference in their life, you see, they became victorious. So this is the beauty of Krishna, that if we take to the spiritual progress, then even our material destiny will also change in our life, right? To give you some practical examples, you see, now many of us were not very good presenters. Many of us are not very good kirtaniyas. It's my experience. I never have good experience of presentation and all those things. But see, because we were trying to serve Krishna, you see, PPT, आप कितने समय से PPT बना रहे हैं? हाँ? इस हिसाब से बना रहे हैं, राइट ना? आई थिंक जब से इन लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, राइट? अभी आप देखो कितने ब्यूटीफुल पीपीटीज बना पा रहे हैं, करेक्ट ना? आप देखो कि ड्यूटीज की लाइफ में होता है, मेनी ड्यूटीज विल फाइंड इट, जो पहले बोल भी नहीं पाते थे, अंग्रेजी के शब्द भी नहीं निकलते थे, कॉन्फिडेंस भी नहीं निकलता था बोलने के लिए, राइट? दे आर नाउ वेरी गुड प्रेजेंटर्स एंड ऑल. सम ऑफ देम आर एबल टू बिकम वेरी गुड, दिस थिंग, सिंगर्स एंड ऑल. तो देखो जो हमारे कर्मा में लिखा है उसके से भी अगर हम
अगर भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो भगवान भी हमको कुछ ऐसे स्किल्स टैलेंट्स भी दे देंगे जो हमारे कोटा में नहीं थे। समझना है आप लोगों को? That is how it works. That's why you'll find all the devotees will find they will have some very wonderful skills and talents and all those things. क्योंकि भगवान उनको एम्पावर भी कर देते हैं भगवान की सेवा के लिए। भगवान जो सेवा करवाना चाहते हैं ना, like Arjuna was there. Arjuna was made very powerful by Krishna because Krishna wanted Arjuna to fight on the battlefield, right? इससे बाद में आता है कि same Arjuna when he was going back taking the queens of Krishna, then कुछ उनको ट्राइबल लोग मिल गए थे, उससे लड़ाई किया, उसमें हार गया वो। तो अर्जुन सोचा कि अरे ऐसे कैसे, जब मैं बैटल में था तो इतने सारे लोगों को मैंने मार उड़ा दिया और अभी मैं छोटे मोटे आदिवासी लोगों से हार गया हूँ। Then I understood that it was because of Krishna's desire. So this is the beauty about the path of spiritual life too, कि भगवान जब इंटरफेयर करते हैं तो वो हमारे मटर डेस्टिनी को भी चेंज कर देते हैं, राइट? Like we see in Mahabharata also many examples, right? Do you recollect some examples? To give one example, let us say, जब you know about जयदत्त, आपको पता होगा कि अर्जुना ने वाव लिया था कि आज के दिन तक, शाम तक मैं जयदत्त को हरिबोल कर दूंगा, अगर नहीं करूंगा तो फिर मैं खुद आई विल डाई माई सेल्फ, ओके ना? तो उस दिन पूरे जो कौरवास थे ना, उन्होंने पूरा स्ट्रेंथ लगाया था एक ही काम के लिए। They have made only one goal of life that day. What was the goal? किसी भी तरीके से जयदत्त को बचा के रखना है, राइट? तो सारे जो ना भीष्म, कर्ण, ना द्रोणाचार्य, दुर्योधन, सारे लोगों ने अपने अपने रथ लगा दिए थे, और सबसे पीछे जयदत्त का रथ लगा रखा था। उन्होंने बोला कि गोल सेटिंग भी उन्होंने कर दिया था कि आज बस गोल सेटिंग हमारे लिए किसी तरीके से सूर्यास्त होने तक हमको बचा के रखना है जयदत्त को, राइट? और वो हो जाएगा जैसे सूर्यास्त होगा, उसके बाद हम सब लोग फीस्ट करेंगे, उसके बाद अर्जुना विल गेट किल्ड एंड देन अर्जुना अगर किल हो गया तो फिर तो बैटल हमारा ही है एक्चुअली, राइट? पूरा उन्होंने स्टैंड लगा दिया था, एंड देन व्हाट कृष्णा डिड, कृष्णा मेड द अरेंजमेंट कि जिससे कि थोड़ा सूर्य धकते हुए दिख गया, एंड देन दे स्टार्टेड फीस्टिंग। सी दे वर क्षत्रिय आज ना, बोला अरे बढ़िया है, सब आ गए, और फिर अर्जुना के पास जाके बोले कि देखो देखो अभी तुम्हारा टाइम आ गया, और तभी भगवान ने कर दिया, क्राउड को हटा दिया, सूरज आ गया वापस, एंड कृष्णा टोल्ड दैट इमीडिएटली यू किल्ड हिम, राइट? तो सी कृष्णा फॉर द सेक ऑफ हिज डिवोटीज ही कैन इवन चेंज द मटेरियल डेस्टिनी, आप देखोगे, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और भी आते हैं। वन टाइम ऑन द बैटलफील्ड, क्या था, आई थिंक किसने एक तीर छोड़ा था, आई डोंट नो किसने छोड़ा था, एक कोई बड़ा अस्त्र छोड़ा था, तो जो गया, जो अर्जुना के सीधा हेलमेट पे लेके हेलमेट पे लगा, हेलमेट गिर गया, कर्णा ने मारा था। तो अर्जुन ने बोला कि अरे कृष्णा थोड़ा देख के चलाओ, थोड़ा क्या कर रहे हो? कृष्णा ने बोला देखो वो जो अस्त्र था ना, उस अस्त्र से तुम्हारा गला कटना लिखा था, राइट? बट ये कृपा मानो तुम मेरे कि तुम्हारा से मुकुट होके खत्म हो गया है काम, राइट? आप देखोगे एक और इंस्टेंस आता है भीम, यू नो अबाउट द, आई थिंक नारायण अस्त्र होता है ना, जिसके सामने आपको सरेंडर करना पड़ता है, दैट्स द ओनली वे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग व्हाट वाज द अस्त्र, राइट? तो एक आई थिंक नारायण अस्त्र ही होता है, तो उस नारायण अस्त्र के सामने कोई बच नहीं सकता है, मरना ही है आपका, लिखा है, राइट? एक ही तरीका है ब्रह्मास्त्र, आई थिंक कोई तो, चलो एनीवेज एक्सवाइजेड जो भी अस्त्र था, भूल गया अभी वो कौन सा अस्त्र था, मे बी मेरे नोट्स में मैंने लिखा है तो मैं बोल देता हूँ, आई थिंक नारायण अस्त्र ही है वो, एक्चुअली नारायण अस्त्र था। The only way to surpass the Narayan Astra is if you surrendered in front of him, right? अगर आप बोल देते हो कि है ना मैं आपकी शरण देता हूँ, मुझे आप है ना बचाइए, तो वो फिर आपको अस्त्र छोड़ देगा, अदरवाइज आपका हरिबोल होने वाला है, राइट? तो आई थिंक आई डोंट नो, शायद अश्वत्थामा ने किसी ने नारायण अस्त्र छोड़ा था पांडवास पे, तो बाकी सारे पांडवास तो है ना झुक गए थे। भगवान ने बोला कृष्ण ने कि अरे सब झुक जाओ और प्रे करो तो कुछ नहीं करेगा आपको, राइट? बट भीम ने बोला कि नहीं, जान जाए पर सिर जाए बट वो ना जाए, राइट? ये टोल्ड कि मैं तो लड़ाई करूंगा। तो कृष्णा ने उनको पकड़ के बोला, कृष्ण ने उनको मार के उनको झुका दिया कि अरे तुम झुक जाओ उसमें, लाइक दैट। तो देन वो ऑफ कोर्स then the astra passed away, actually speaking. So the point I'm trying to tell is that how when we take shelter of Krishna, then what happens is Krishna even changes our material destination, right? आपने और सुना होगा कि कैसे जो सांदीपनी मुनि थे, उनका जो बच्चा था वो यमलोक में चला गया था, तो फिर उनको भी लेकर आते हैं वापस, So this is the beauty of the spiritual path, that if we take shelter of Krishna, then Krishna can even change our material destination. One time when Prabhupada was in America, तो वहाँ पे एक डिवोटी भगवान के लिए सब्जी काट रहा था, कुछ काट रहा था, राइट? तो उसका थोड़ा फिंगर कट गया, थोड़ा सा। तो then he told to Prabhupada that Prabhupada, I was trying to cut vegetables for Krishna, then why Krishna cut my finger? Prabhupada told that your head was supposed to be cut, but Krishna has minimized your punishment to only cutting off your finger. So Krishna does like this, you will find. आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास में जाओ, if you are devotee of Krishna ना, अगर आप सिंसियर हो, डिवोटी हो, इस नाम के वास्ते नहीं, सिंसियर डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हो ना,
he will tell you कि आपके लाइफ में अभी ग्रह नक्षत्र काम नहीं करेंगे, अभी कृष्णा का आपके लाइफ में इंटरफेरेंस रहेगा, आपके कर्मा के हिसाब से जो लिखा होना था अब वैसा जरूरी नहीं कि वही चीजें होंगी, राइट? बिकॉज कृष्णा पर्सनली इंटरफेयर विथ योर कर्मा, और वो भगवान इस तरीके से हमारे लाइफ में हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस देते हैं, इस तरीके से सिचुएशन देते हैं ताकि हम सीरियस बन पाए भक्ति करने के लिए, राइट? अभी आप सबने चैंटिंग कर लिया ना, हरे कृष्णा बोल गया ना, प्रसाद खा लिया ना, अभी आप कृष्णा में नॉट लीव यू नाउ, यू गो एनीवेयर, राइट? कल हो सकता है कि आपका मन बदल जाए, भक्ति छोड़ो, अभी नहीं करेंगे ना, आप इस लाइफ टाइम अभी आपका गया है, मतलब समझ लो आप कुछ समय के लिए आप इधर उधर चले भी जाओगे तो भी कृष्णा छोड़ेंगे नहीं आपको, यू हैव टू कम टू भक्ति, यू हैव टू बिकम अ डिवोटी, दैट विल हैपन इन योर लाइफ नाउ, कृष्णा विल नॉट लीव यू नाउ, दैट इज हाउ कृष्णा इज, व्हेन पूतना केम टू कृष्णा, पूतना आई थी जहर पिलाने के लिए, और फिर बाद में होती है छोड़ो छोड़ो मेरे को, छोड़ो छोड़ो, राइट? कृष्णा ने पकड़ लिया तो छोड़ा नहीं, राइट? कृष्णा इज लाइक दैट, कृष्णा एक बार पकड़ लेते हैं किसी को तो छोड़ते नहीं आसान से, राइट? ऋतिक टू, ठीक है ना? आपको लग रहा होगा कि मस्ती करेंगे बाद में, तो अभी क्या है, यहाँ पे तो थोड़ा पकड़ रखा है हम लोगों को, राइट? सुबह उठा देते हैं और चैंट करवा देते हैं, राइट ना? बाद में बस थोड़ा सा दिन रुक जाता हूँ, उसके बाद देखो कृष्णा देख रहे हैं वहाँ पे, कृष्णा इज चीटर, ही इज द बिगेस्ट चीट, राइट ना? यू कैन नॉट चीट कृष्णा नाउ, गया आपका लाइफ, गलत डिसीजन ले लिया आपने सिस्टम में आने का, गया आपका, राइट? कुछ समय आप थोड़ा एंजॉयमेंट कर भी लोगे बट आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा पता है? क्योंकि इतना फिलॉसफी सुनी है ना अभी आपने, पेरिशेबिलिटी है ना, क्या ड्युअलिटी, रिलेटिविटी, राइट ना? अभी क्या आप ट्राई करोगे, आजमाने का भी ट्राई करोगे तो भी फिर क्या वही सब फिलॉसफी याद आएगी, अभी आप जाओगे ना ट्राई करने के लिए, राइट? ऑलरेडी वो एंथुसियास्टिकली चार्ट वार्ट भी बनाया था आप लोगों ने, तो राइट ना? तो डिवोटी बेचारा मटली बाद में अगर एंजॉयमेंट भी करने की कोशिश करता है तो उसको समझ में आ जाता है, सारी फिलॉसफी सुनी हुई है ना सारी, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे मटल लाइफ में, राइट? यू हैव टू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा नाउ, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। बनना है अभी, बनना है कि थोड़ा एंजॉयमेंट के बाद बनना है? हाँ तो ठीक है, अभी तक थ्योरेटिकली सुना है, प्रैक्टिकली भी ट्राई करके देखना चाहते हो तो कर लो भैया, और तो क्या है, बट आना तो इधर ही पड़ेगा आपको एक्चुअली। दिस आल्सो कृष्णा बेसिकली ही डज नॉट see Krishna is very loving to his devotee, a very wonderful friend of a devotee. Actually he is the real friend which all of us are looking for in our life actually speaking, right? And our happiness can come only in Krishna. मैं ऐसी थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, 11 साल के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, राइट? आप कुछ भी ट्राई मार दो जिंदगी में, मैंने भी बहुत सारी चीजें ट्राई मारी हैं और बहुत सारे लोग भी मारते हैं लाइफ में, राइट ना? कहीं हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला है, ये वर्ल्ड एक ओएसिस, एक डेजर्ट है, हैप्पीनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही है एक्चुअली। ये कन्विक्शन है, इसलिए लोग देखो 60 इयर्स 70 इयर्स के लिए भी कृष्णा कॉन्शियस कर रहे हैं। ये देखो आपके इमीडिएट लोग भी कर रहे हैं ना, लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें प्लेजर है भैया, बाकी सब जगह पे वही है। हमने स्टोरी डिस्कस किया ना, सर्कस वाला स्टोरी, राइट? लाते घुसे हैं और एक दूसरे को बस इंस्पायर करना है, राइट? मैं भी लाते घुसे खाता हूँ, दूसरे भी हंसे चलता रहता है। एनीवेज, सो ये पॉइंट समझ में आपको कि when you make spiritual progress, then even your material destiny will also change in your life, you'll find. So even लिखा है कि आपके लाइफ में जो पनिशमेंट लिखा था वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्या भगवान देंगे तो छोटा पनिशमेंट देंगे, थोड़ा आपको अवेयर रखने के लिए, अवेक रखने के लिए, राइट? Because Krishna personally orchestrate your life when you become a devotee of Krishna. To the degree you are sincerely becoming devotee of Krishna, to that degree Krishna will interfere in your life. अगर आप 10% सिंसियरिटी शो कर रहे हो तो भगवान फिर 10% इंटरफेयर करेंगे आपकी लाइफ में। 50% है तो 50% भगवान भी इंटरफेयर करेंगे आपकी लाइफ में। 100% है तो फिर तो कहना ही क्या। Okay, I think some examples are listed. I think बस last 2-3 slides बची है. Read it out. We are almost done now with the session. Read. Only Krishna We change our destiny. Push to Krishna. So then we can't say that the Vedic system or Sanatana Dharma is fatalistic. There actually is endeavor for progress. Fatalistic मतलब क्या होता है? हाँ, भाग्यवादी, राइट? कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना कि अरे आप लोग भाग्य के बारे में बात करते हो, सनातन धर्म में भाग्य के बारे में बोला जाता है, इसलिए भाग्यवाद के कारण लोग लेजी बन जाते हैं, राइट? तो ये पूछ रहे हैं, पुस्ता कृष्णा इज अ डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, वो पूछ रहे हैं कि so we cannot say that that Vedic system was fatalistic, मतलब लोगों को आलसी बनाने के लिए बताया जाता था, राइट? प्रभुपाद बता रहे हैं, देखो, Prabhupada, certainly spiritual progress. As for the question of fatalistic, I have often given this example. Let us say a man is condemned by a court of law to be hanged. Nobody can check it. Even the same judge who gave the verdict cannot check it. But if the man begs for the mercy of the king can check the execution. He can go totally above the law. Therefore, the Brahma Samhita says
कर्माणि निद्राति किंतु च भक्ति भाजम. Destiny can be changed by Krishna for his devotees. Otherwise, it is not possible. Therefore, our only business should be to surrender to Krishna. And if you artificially want to be more happy by economic development, that is not possible. Yeah. तो बेसिकली क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद? मतलब कृष्णा कैन चेंज आवर डेस्टिनी. जैसे होता है ना, सपोज एक राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति किसने कुछ क्राइम किया, बड़ा सा क्राइम, राइट? तो आपको पता होगा कि लास्ट वो राष्ट्रपति के पास में भी जा सकते हैं. एमनेस्टी बोलते हैं उसको, एमनेस्टी, राइट? राष्ट्रपति की मर्सी के लिए गुहार जिसको बोलते हैं, राइट ना? तो बिकॉज कृष्णा इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, तो कृष्णा कैन फ्री अस फ्रॉम ऑल अवर कर्मास. नोबडी एल्स, no other devi devatas, Lord Shiva, Brahma, and Ganesh, Durga, nobody can free us from our karma. We have to suffer our karma. Only Krishna can interfere with our karma. Just like you see, somebody has done a big crime. Can anyone else change his, punishment? Nobody else can change his punishment except for the President of India. So वैसे ही Krishna can only change our destination. मैं यहाँ पे बता रहे हैं, right? Okay, next thing. Read the heading also, no? Real progress versus illusory progress. Srila Prabhupada. A dog is running here and there on 4 legs, and you are running on 4 wheels. Is that progress? The Vedic system is this: the human being has a certain amount of energy, better energy than the animals, better consciousness, and that energy should be utilized for spiritual advancement. So the whole Vedic system is meant for spiritual advancement. So see, we have a limited duration of life in this world. We have limited human energy. So if we will drain our whole human energy only for the animalistic activities, then we will not be able to make a best use of the human form of life. That's why we have to have proper utilization of our human energy, right? छोटा सा तो जीवन मिला है हमको. अगर आपने बहुत ज्यादा मटेरियल एडवांसमेंट के लिए काम किया तो आपके पास में स्पेशल एनर्जी नहीं रहेगी, राइट? नाउअडेज पीपल से ना कि अरे समय नहीं है स्वामी जी, समय नहीं है गुरु जी, समय नहीं है. क्यों नहीं समय नहीं है? भाग दौड़ में लगे हुए इतना, राइट? ट्राइंग टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर एंड मोर, राइट? एक सिंपल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं है लोगों के पास में. सो इट्स अ वेरी बिग, इट्स अ बिग, और इतना भाग दौड़ करने के बाद में भी हैप्पीनेस नहीं मिलता है, देखो, राइट? पीपल स्टिल फील सफर. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ the limited energy which we have, that should be used for the most important business of elevating our consciousness. हमारी चेतना को विकसित करने के लिए हमें एनर्जी यूज करना चाहिए. That's the main thing Prabhupada is mentioning here, okay? Not simply for increasing our luxuries and the comforts, which is happening in the world today, right? So much focus is there to increase the luxuries and the comforts, right? अब देखो अभी मैंने देख रहा था, आपको ब्लूटूथ वाला आने लगा ना, पहले वो वाला आया, फिर दूसरा वाला आने लग गया, फिर ऐसे वाला आने लग गया, राइट? कितना जल्दी आप देखोगे ना चेंजेस होते रहता है, राइट? डिवोटी भी में देखा है, वो लेता है, जब तक बेचारा वो ऐसा लेता है तब तक कोई दूसरा मॉडल आ जाता है, फिर उसका दूसरी तरफ के लिए अट्रैक्शन हो जाता है, राइट? अभिनव ने भी एक लिया था, मैं देखा कुछ दिनों के लिए, अभी पहन में नहीं दिख रहा है, वो शायद आउटडेटेड हो गया अभी वो वाला मॉडल, राइट? तो आप देखोगे कि मटेरियल कंफर्ट्स के लिए, लग्जरीज के लिए कितना भाग दौड़ चल रहा है इस वर्ल्ड में, राइट? पूरा लोग उसी में अपना एनर्जी लगा दे रहे हैं, राइट? विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट in spite of all making all these comforts, you will not be able to enjoy those comforts for all the time to come. Will we be able to enjoy these luxuries and the comforts which we are getting today? We'll have to leave everything. You have the best of the mobiles, you have the best of the laptops, you manufacture best of the internet, 5G, 4G, 6G. श्रीजी को छोड़ के बाकी सब जी कर दो आप. श्रीजी हूँ राधा रानी इज कॉल्ड श्रीजी, ओके? तो आप देखोगे वो सब प्रोग्रेस हमको हेल्प नहीं करने वाला, राइट? तो इसलिए शास्त्रास आर टेलिंग वी हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ह्यूमन एनर्जी दैट शुड बी यूज्ड फॉर फोकसिंग अपॉन द मेन बिजनेस ऑफ लाइफ, ओके? लेट्स से कृष्णा सेज इन द गीता, सर्व धर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. एक्चुअली सी दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग, दैट जस्ट डोंट वरी अबाउट योर कर्मा, क्या पाप किया आपने, क्या पुण्य किया, सब उसके बारे में भूल जाओ. आप इमीडिएटली मुझको सरेंडर करो, एंड देन आई विल टेक केयर ऑफ यू इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. And what is the meaning of surrendering to Krishna? Following the will of Krishna. That is meaning of the surrendering to Krishna. What Krishna wants from us, that is being that comes in our life by the media of Guru, Sadhu, and Shastras. The Guru teaches us that what Krishna wants in our life. The Shastras teaches us that thing, and the devotees they teach us that thing, right? So if we are following them in our life, like all of us have been told about chanting Hare Krishna, we should give a very good try to chant very attentively in our life. Today morning मैंने थोड़ा इनको बैठाया साथ में, क्या मेरे साथ बैठ के chant करो. मैं देखा हूँ वहाँ पे दीवार के साथ में बैठते हैं, शुरू में तो ठीक दिखते हैं, फिर धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं, ऐसे करके हो जाते हैं.
आज मैंने को बैठाया साथ में बैठकर, राइट? अच्छा चैंटिंग होगा कि नहीं आपका, राइट? We should make a good effort to make chanting every day. So that is how we surrender to Krishna, to do what Krishna desires from us, to chant very nicely, to hear about this message, and to implement these things in our life. Nothing is theoretical. You see, we are very serious people. You know, whatever we are discussing is what we want to practice in our life, what we want to have in our life. So if you do all these things, that is how we surrender to Krishna. And Krishna is assuring that no, don't bother. Arjuna was thinking कि अरे मेरे पाप का क्या होगा? But don't worry about it. Just तुम surrender करो मुझको, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम वे करो, बाकी तुम्हारा पाप पुण्य सब मैं देख लूंगा. Krishna will take care. That is how it works. So the last thing, so say Krishna consciousness helps us in both of the ways. How it helps? First thing, it helps to face our destiny in a better way, right? So what it says, if we are anchored at Lord's lotus feet, we can tolerate the storm of the unfavorable destiny. इसका क्या मतलब हुआ? Any of you would like to explain? हाँ, बताओ कार्तिक ब्रो. हाँ. ओके, एक चीज और बताई गई है यहाँ पे. The storm of unfavorable destiny, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये सब अभिषेक ब्रो. सर अगर हम लॉर्ड के फीड्स को सरेंडर करते हैं लोटस फीड तो फिर जो हमारे कर्मा में बुरा भी लिखा है तो फिर वो भी हमारा मतलब कि अच्छा हो जाएगा अगर हम अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस सेटिंग करें. या बेसिकली क्या है, आप देखोगे, इफ वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, तो डेस्टिनी के हिसाब से जो हमको बुरी चीजें भी मिलने लिखी है, हम उनको भी अच्छे से टॉलरेट कर पाएंगे, अच्छे से फेस कर पाएंगे, राइट? इस वर्ड में आप देखोगे somebody किसी के लाइफ में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है ना, then because if they don't have knowledge about Krishna, if they don't take shelter of Krishna, then what happens? Because they are on their own, then they even commit suicides, they get into depression, they are into complaining mode at why God is doing this thing in my life, right? People become very frustrated, angry, they commit suicide also for small difficulties coming in their life. But if we have a Krishna conscious view, if we are taking spiritual practices seriously in our life, then we will be able to face our destiny also in a very wonderful way, right? Because we learn here that how we have to tolerate. See, कुछ चीजें जो हमको बस टॉलरेट करनी है, कुछ चीजें जिसमें हम डिफरेंसेस कर सकते हैं, कुछ चीजें हमको अपनी लाइफ में टॉलरेट करनी होती हैं, राइट? तो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको हेल्प करती है हमारी डेस्टिनी को भी अच्छे से फेस करने के लिए. समझे आपको ये पॉइंट? लाइक डिवोटी की लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. इट्स नॉट दैट डिवोटी की लाइफ में तो स्मूथ चलता है. नो, बिकॉज वी आर इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड. Just because we become devotee does not mean that the nature of the world is going to become different for us. For example, like Pandavas now. Pandavas were such great devotees of Krishna. So was everything very smooth in their life? सब कुछ फर्स्ट क्लास मिल रहा था हमको, बचपन से पैदा होते ही राजकुमार थे, फटाफट से किंगडम में मिल गया और फिर मस्त एंजॉय कर रहे थे मटेरियल लाइफ. ऐसा था क्या? They have to suffer so much, isn't it, right? In their case, all the more Krishna was personally their friend. Still they have to suffer so much, right? So the thing is that the nature of this world is not going to change even for a devotee. It's going to remain only dukhalayam. But because a devotee has shelter of Krishna, a devotee does not feel pained by all these sufferings. The sufferings may come, but pain is optional. Suffering is unavoidable, but pain is avoidable. So समझ में आपको, suffering आएंगे, but pain होना या नहीं होना वो avoidable है, right? तो हमें अपनी destiny को भी face करने के लिए आसानी मिलती है, right? Like many of our devotees also we have seen, students and all that. Those of them who become very good devotees, sincere devotees ना, then they become very positively situated in their mind. Even उनके लाइफ में ups and downs भी आते हैं तो भी वो बस उसको happily कर पाते हैं, आगे मूव कर पाते हैं उनके लाइफ में. I remember one time one devotee was there. I think आपके सीनियर में प्रतीक प्रो करके थे आपके बैच में. I think कौन है, अक्षय प्रो के बैच के ऊपर वाले बैच में थे, right now. He was a very wonderful devotee. He was practicing. So when he was in college days, I think third year or somewhere, you know, उनके father he passed away. He was an aged man. His father passed away. So I just talked with him the same day. He was moving in the train. I was in Kanpur. So then I was talking to him, and I was just amazed that he was so calm, composed, and इन्हें उनका कुछ preaching का भी responsibilities था. तो बोलते कि मुझे ये थोड़ा ऐसा था, मैंने उसको इनको बोल दिया कर लेने के लिए. मैं घर जा रहा हूँ. And I was saying, "Arey Baba, you don't worry about it right now. You just focus upon your homely affairs. Other things, other devotees will take care of you, right?" So you'll find devotees are able to even face all the challenging situations in a very healthy way, because you get a very positive vision of life, you know, when you become devotee. So this is one thing, that we will be able to face our destiny also in a better way, right? The example is of the Pandavas. And second thing is, not only that, we will be also able to improve our future destiny. See, read it out. Our past actions have created our present destiny. So our present Krishna consciousness acts will determine our future destiny.
this is certainly a bright future. Yeah, so we are creating a very bright future for ourselves. In this world, so many people are dying. They don't know that what is going to be the destination. But here, if you are practicing spiritual life, we know for sure, because the words of Shastras are the words of the Shastras are perfect. The Shastras are promising us that if you are practicing spiritual life, we will have a very bright future. We will be able to go to the abode of Krishna. So these are the two ways by which we find that Krishna consciousness will help us to face our destiny also in a healthy way and to also improve our future destination. You will find. And ऐसा नहीं कि बाद में हम इवन हमारे इस लाइफ में भी आप देखोगे कि हम अच्छी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर पाएंगे, राइट? जैसे आप स्टार्ट करते हो भक्ति करना, आप देखोगे आपका लाइफ हेल्दी हो जाएगा. योर माइंडसेट विल आल्सो बिकम हेल्दी, योर बॉडी विल आल्सो बिकम हेल्दी, and your association will also become very, very healthy. Even in this life also, you will be able to experience happiness, and beyond that also you will find. So that's why it says, Bhagavad Gita, see what it says, Krishna told to Arjuna, Tasma tvam utthishtesho labhashva jitva shatvan bhushva rajyam samriddham maya vete nihita purvam eva nimitta matram bhavasabhya sachi, right? Read the translation. Therefore get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my hand. And you, oh Sabyasachi, can be but an instrument in the fight. Yeah, so Krishna told to Arjuna that Arjuna was thinking that how can I kill them? Krishna told that, see, already उनका मरना तो लिखा ही है, मैंने already उनको मार दिया है, उनका मरना लिखा ही है, right? अभी तुम बस उसका क्रेडिट ले लो, right ना? So like you don't have to worry कि आपको किंगडम मिलेगा नहीं मिलेगा, जीतोगे हारोगे, अरे वो ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया कि उनका मरना लिखा है. This दुर्योधना, दुशासना and all these people, ऑलरेडी उनका मरना लिखा है. तो वैसे क्या है, देखो, it is told, success is destined, but you have to endeavor and take the credit. This is what Krishna told to Arjuna, right now. So why? Because Krishna told that they are adharmic. I want dharma to be established, so that's why their killing is already there, right? तो देखो वैसे क्या है, हमारी लाइफ में भी जो सक्सेस देनी है भगवान को, वो ऑलरेडी लिखी है, हमको बस अपना एफर्ट लगाना है और वो मिलना है जो मिलना होगा, राइट? लाइक इट इज बीइंग टोल्ड दैट हाउ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो मूवमेंट दिया है, अगले 10,000 साल तक के लिए काफी अच्छे से स्प्रेड होगा. चैतन्य महाप्रभु हैज टोल्ड दैट इवन इन एवरी टाउन एंड विलेज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम विल बी देयर. अभी भी हो गया है ऑलमोस्ट इस तरीके का चीज. इसलिए आई एम आल्सो सीइंग ईयर आफ्टर ईयर, आई एम सीइंग दैट in all the good colleges, we are getting very wonderful devotees year after year, because it is always going to happen, right? It was my credit that I come, I do some service and I get credit for this thing, but it is always going to happen, right? Doesn't matter that whether I am there or not, it is going to happen that way. So Krishna is telling that how, just take the credit, right? So we have to do our part and we have to understand that Krishna's will ultimately acts. That is how. So that's why we should be happily doing our dharma nicely. That is what Krishna does here, तो सक्सेस ऑलरेडी डेस्टाइन्ड रहता है डिवोटी के लिए, हमको बस अपना एफर्ट पुट करना है, बाकी सक्सेस मिल जाता है. आप देखोगे जो लिखा होगा भगवान की इच्छा के हिसाब से, राइट? So that's why it is told, right? Power of prayers. Oh Lord, give me the courage to change the things which can and ought to be changed, the serenity to accept the things which cannot be changed, and the wisdom to know the difference. See, it is being told, prayers go up and the blessings comes down. तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ना कि कैसे जो डिवोटी है वो तो प्रे कर रहा है, राइट? ही इज प्रेइंग आउट ऑफ वेरी ईगरनेस. तो वैसे हमारी लाइफ में भी हमको प्रे करना चाहिए भगवान को, अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट शुड बी आवर प्रेयर, गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स व्हिच कैन एंड ought to be changed, right? Like for example, like we have some bad habits and all, we should try a very good effort to change those bad habits, right now, and the serenity to accept the things which cannot be changed, right? और कुछ चीजें हमारी लाइफ में जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेट अस से, so then we should pray to Krishna that give me the courage to be able to accept them in my life and to go on with them in my life. So basically we should not become too much disturbed by them. कुछ painful चीज हमारी लाइफ में आई है तो disturb नहीं होना चाहिए, we should tolerate it and go on with our life. So that is how when we do prayers to Krishna, then you will find that we will get the blessings and then we will be able to healthily move in our life. Okay, see, read this, the last slide. Read this. And love as the foundation of life. The world we live in is simply a drama stage. We originally belong to the spiritual world. Remember this fact and be aware that we have to reap the fruits from every action. Give up bad habits and prepare yourself to return back to your original home, the spiritual world. Yes, so that should be the goal of life. Okay.
I think ये भी just पढ़ सकते हैं ना. This is another thing. Does destiny not hamper my free will, right? क्या destiny हमारे free will को भी affect करती है क्या, right? क्या मेरी free will भी destiny पे dependent है क्या? आप पढ़ोगे तो आपको इसको समझ आएगा, right? Does destiny not hamper my free will? If I purchase a ticket to Bangalore for an airline flight, once the plane has taken off. Okay, just a second, right? इसका एक example मैं आपको दे देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, right? For example, I suppose somebody we discussed ना, somebody is born into the झोपड़पट्टी family, slum family में पैदा, right? तो अभी क्योंकि उसमें पैदा हुआ है तो उसका मतलब है नेचुरल है कि उसको ड्रिंकिंग करनी चाहिए, स्मोकिंग करनी चाहिए, रॉन्ग हैबिट्स में जाना ही चाहिए, राइट? तो सर उसकी फ्री विल कहाँ पे रही? समझे आपको क्वेश्चन? फिर उसको डेस्टिनी के हिसाब से ऐसी सेटिंग मिल गई जिसके कारण वो नेचुरली उसी में इंडल्ज करने वाला है, तो फिर उसके पास फ्री विल रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या लगता है आप लोगों को? फ्री विल रहेगी उसके केस में? क्या उसकी डेस्टिनी उसके फ्री विल से इंटरफेयर नहीं कर रही है, राइट? उसका आंसर इससे मिल जाएगा आपको, रीड ये सिचुएशन समझाना था, समझ जाओगे, समझ आ जाएगा ऐसे. If I purchase a ticket to Bangalore for an airline flight, once the plane has taken off, my decision to board the plane forces me to continue flying until the plane lands. But although I'm forced to accept the reaction of this decision, on board the plane, I have many new decisions I can make. I may accept food and drink from the stewardesses or reject it. I may read a magazine or newspaper. I may sleep, walk up and down the aisle, converse with the other passengers, and so on. Even within that situation, I'm constantly making new decisions and creating new reactions. If I cause a disturbance on the plane, I may be arrested when the plane lands. If I make friends with a businessman next to me on a plane, it may lead to a favorable business transaction in future. Thus, our destiny does not hamper our free will. Rather, a sincere devotee of God can easily overcome the previous conditionings by humble surrender. So, क्या हुआ? उसका आंसर क्या हुआ? समझ में आप लोगों को? नहीं समझ में आया? ओके. कितने लोगों को समझ में आ गया पॉइंट? ओके, ठीक है. क्या समझ में आया बताओ? सर इसकी जो स्लम वाला उसके हिसाब से. हाँ सर इसकी इसमें भी उसने प्लेन बोर्ड किया, उसके बाद उसके पास कुछ और चॉइसेस हैं. ओके ओके, यहाँ जो एग्जांपल समझाया पहले उसको समझ लेते हैं. एक्सप्लेन. इसकी उसने प्लेन बोर्ड किया, तो जब प्लेन टेक ऑफ कर गई तो उसको फ्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका प्रीवियस कर्म था कि उसने प्लेन का टिकट लिया और बोर्ड किया. ठीक है. तो ही कांट चेंज दैट. पर जो प्लेन में वो करेगा वो उसके कंट्रोल में है. कुछ चीजें वो कर सकता है कि उसे खाना है, जूस लेना है या नहीं लेना है, किसी से बात करना है या नहीं करना है, उसके हिसाब से जो उसके आगे का ये होगा वो डिसाइड होगा. इसलिए अगर उसने प्लेन में कुछ गड़बड़ किया, किसी को डराया, फिर पायलट के कॉकपिट में घुस गया, फिर ऐसा कुछ किया, तो प्लेन लैंड होने के बाद उसको उसका कॉन्सिक्वेंस मिलेगा कि उसे अरेस्ट किया जाएगा. नहीं तो अगर कोई बिजनेसमैन है प्लेन में, उसने उससे बातचीत की तो उसको बिजनेस का आइडिया लगेगा, तो उसको फ्यूचर में उसको हेल्प करेगा बिजनेस करने में. यस. तो आपको एग्जांपल समझ में आया? भाई प्लेन में उसका बैठना लिखा था, सपोज उसने टिकट विकेट लेके बैठ तो गया, अभी मान लो. अब उसके पास ऑप्शन नहीं है कि प्लेन से उतरने का ऑप्शन नहीं है उसके पास, राइट? बट अभी प्लेन में वो क्या करने वाला है, वो उसका आगे का डेस्टिनेशन डिसाइड करने वाला, राइट? तो देखो क्या है, सिमिलरली क्या बता रखा है, डेस्टिनी के हिसाब से हमको कुछ चीजें मिल गई हमारे लाइफ में, राइट? लेकिन अभी उसको आगे कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं वो हमारे फ्री विल पर डिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि हमारी फ्री विल भी उसके कारण अफेक्ट हो जाएगी. तो अनदर एग्जांपल, स्लम वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया. अभी कोई स्लम में बॉर्न हुआ है, बिकॉज ऑफ प्रीवियस कर्मा, उसका बैड कर्मा, इसलिए वो स्लम में बॉर्न हुआ है, उसको कुछ डर्टी टाइप ऑफ सेटिंग मिली है जिसमें उसके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डर्टी हैबिट्स में जाने का, राइट? बट उसकी फ्री विल फिर भी उसके पास में है. अगर वो बोले कि नहीं, मुझे हरे कृष्णा डिवोटीज का एसोसिएशन लेना है, I want to become devoted, I don't want to follow all these bad habits, then he can always make a choice, right? तो इसलिए बताया मेन पॉइंट क्या है, destiny does not hamper our free will, thus we are only responsible for all my actions, right? So we cannot say कि अरे है ना, मेरी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, राइट? नहीं, आपने जो किया उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप ही रिस्पॉन्सिबल है, राइट? If we will make proper choices, then we will go into the proper place. If we will make wrong choices, then we will go to the wrong place, right? समझे आपको वाला पॉइंट? So this is the main thing which is being told here right now. So ultimately we are the deciders of our own destinations, right? We cannot blame anyone else for our destiny. We have created our destiny previously, and now also
what course of action we are going to take, that is going to define our next destination. ये main point है यहाँ पे समझाने के लिए. सुन रहे हैं आपको? Yeah, surely there is a greater, for example, like जो slum में born हुआ है, now he has a greater probability to indulge into the sinful activities because उससे की setting में मिला है उसको वो गिफ्ट मिला है उसके पुराने कर्म के हिसाब से, जिसके कारण उसके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी घुसने का, लेकिन फिर भी उसके पास में फ्री विल है कि वो चाहे तो उससे अवॉइड कर सकता है. समझ रहे हैं आपका? Like tomorrow, suppose you go to the hostel, like no, you are staying here. Let us say you go to the hostel, you find some of your friends are seeing some dirty movie now. Now, for you to be there or not, is it dependent upon you or not? आपकी फ्री विल पर ही है, राइट ना? नहीं उन्होंने से कह रहे मैं तो कॉलेज गया था और मैं कोई डर्टी चीजें देख रही थी इसलिए उन्होंने मुझे फोर्स कर दिया देखने के लिए, या मैं भी फोर्स्ड हो गया. राइट, अल्टीमेटली आपने अपनी फ्री विल को मिसयूज किया. गेटिंग ना? तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस. वो यहाँ पे बताने की कोशिश की. ओके ओके, सो विद दिस एंड्स अवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. राइट, एक और चीज, छोटा सा आर्टिकल था वो छूट गया, वो हम लोग लेकिन अभी नहीं लेंगे, अभी सैचुरेशन हो जाएगा. राइट, किसी का कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप हम ले सकते हैं, मे बी 1-2 क्वेश्चंस बिफोर वी हैव अवर नेक्स्ट सेशन related to what we discussed. Right, just to summarize, एक ओवरऑल आइडिया हम सबको मिल गया. What is the role of destiny? What is the role of free will? Right, the topic was, is everything destined in my life? So what is the answer if I ask you in 1-2 sentence? Is everything destined in my life? If you have to summarize what we discussed in 1-2 lines, how will you summarize? Yes, Piyush, go. Take the mic. I think recording चल रहा है तो अच्छा रहेगा. So for this life, we can say it is destined, or till the pap and punya continue. Wait. Question is everything in my life destined? Now you think and tell. So for हमें जो this डिस्कस life, किया उसके हिसाब से. हाँ, for this life, we can say yes. ओके, ठीक है. और अच्छा, और बोलो, और समझ में क्या बोलोगे आप? और फिर जो आगे की लाइफ होंगे उसका डेस्टिनी, उसका जो वो होगा वो इस लाइफ के हमारे चॉइस. तो इसका मतलब है इस लाइफ में सब कुछ जो चलना है चलते रहेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें. डज इट मेक लाइक हमने ऐसा डिस्कस किया? इस लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर सकता. राइट, ठीक है, जो मेरे लाइफ में लिखा है हो रहा है, होता रहेगा. राइट, मैं कुछ गलत एक्शन भी कर रहा हूँ तो वो भी मतलब है ना, लिखा हुआ है पुराने जीवन का, भी अगले जीवन तक मुझे वेट करना पड़ेगा तभी मैं लाइक दैट. नहीं, आप बताओ, आपको बताना पड़ेगा. अभी डिस्कशन किया ना इतना कुछ हमने, बताओ. मतलब डिपेंड करता है पूरा. हाँ देखो, कुछ चीजें इस लाइफ में क्या है, डेस्टाइंड है, और कुछ चीजें डेस्टाइंड नहीं है. ये डिस्कस किया ना हमने. क्या चीजें डेस्टाइंड है? लाइक हमें कैसे फैमिली में हम बॉर्न होते हैं, हाँ, कैसा वेल्थ मिलने वाला है, कैसा कैसा ब्यूटी मिलने वाला है. राइट, दीज थिंग्स आर डेस्टाइंड. लेकिन क्या चीज डेस्टाइंड नहीं है इस लाइफ में? कि हम कैसे इसमें रहते हैं और कैसे मतलब एक्ट करते हैं. हाँ. कैसे इन चीजों को यूज करते हैं हमारे लाइफ में, कैसे एक्ट करते हैं, वो डिसाइडेड नहीं है. वो अभी हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, हमारा कर्मा. समझ में आपको पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड. समझ में आपको पॉइंट? अभी हम क्रिएट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमारी फर्दर डेस्टिनेशन डिसाइड होगी. राइट, इसी लाइफ में आप देखोगे, अगर आपने अभी जैसे लाइक नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ, तो हमारा सारा कोटा वोटा भगवान खत्म कर देते हैं, हमको देते हैं. राइट, तो इवन अगर इस लाइफ में कोई पुण्य कर्म भी कर रहा है, सब उसके पुराने जन्म के कारण बुरे कर्म किए थे उसने, इसलिए भी बुरा सेटिंग मिला है उसको, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अभी पुण्य कर्म करता है तो इसी लाइफ में हो सकता है कि जब वो जल्दी वो अच्छी चीजें पाना स्टार्ट कर लेगा अपने लाइफ में. गेटिंग ना? ओके, राइट. और कोई समराइज करना चाहेगा? और कोई 2-3 स्टेटमेंट्स में? इज एवरीथिंग इन माय लाइफ डेस्टाइंड? वैसे मेन समरी यही है जो हमने जिस बताना था, बट चलो. हाँ सर, यही कि जैसे कि कुछ चॉइसेस हमारे पास होती हैं, जैसे कुछ हम लोग चूज कर सकते हैं अपने फ्री विल के हिसाब से, और कुछ होता है जो पहले से डिस्टाइंड होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते. बस यही समझ. हाँ, तो बेसिकली वी हैव आवर फ्री विल विद अस ऑलवेज. राइट, हमारी फ्री विल हमारे साथ में ऐसा हमेशा रहने वाली है. कुछ चीजें हमारी लाइफ में डेस्टाइंड है और कुछ चीजें जो कि अभी हम डेस्टाइंड नहीं है, और बेस्ड अपॉन आवर फ्री विल नाउ थिंग्स आर गोइंग टू develop based in the future course. Right, so anyways, material destiny is anyways fixed, more or less it is fixed. Right, but spiritual destination is not fixed. We can make as much spiritual progress as we want to have, and even if we make spiritual progress, then even our material destination will also change, है ना, by the mercy of Krishna. This is the main summary of what we discussed. Right, अभी एक क्वेश्चन रह गया, वो था, does Krishna knows about our future now further? आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है, राइट, क्या हम करेंगे आगे, क्या वो कृष्ण जानते हैं? तो वो हम लोग फिर अगली बार जब बैठेंगे तब डिस्कस करते हैं. उसके लिए हाफ एन आवर लगाना पड़ेगा हमको. दिस इज अ वंडरफुल आर्टिकल, कन्वर्सेशन ऑफ प्रभुपाद विद अ डिसाइपल, जिसमें प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अबाउट डस कृष्णा नोज योर फ्यूचर, लाइक आगे आप क्या करने वाले हो SSW2 के बाद में,
2.0 के बाद में, क्या भगवान को पता है ऑलरेडी? क्या लगता है वैसे आप लोगों को पता है भगवान को पूरा तरीके से पता है, राइट? आगे चल के फिर अब क्या क्या करने वाले हो, राइट? ठीक है हम, हाँ ठीक है, चलो उसको डिस्कस करेंगे उसी टाइम।